اور ہم بانٹ رہے ہیں ڈھیر ساری محبتیں. دوستی ایسا ناتا جو سونے سے بھی مہنگا. دوستی بہت ضروری ہے محمد. میں نے سنا ہے کہ تم مارننگ شوز پہ جاتے نہیں ہو. اس کے لیے صبح اٹھنا پڑتا ہے نا. گرلز کالج کے باہر جا کے کھڑے ہوتے تھے یا نہیں؟ نہیں. بچپن میں پڑوسیوں کی بیل بجا کے بھاگے تھے کہ نہیں؟ ہاں نا. ہاں فاتی جی بتائے. نادر ہسبینڈ. لڑکی تو ہے بڑی ہمارا ٹاپک ہے ماں. میری ماں نے اور میرے باپ نے دونوں نے جو مجھے چیزیں سکھائی ہیں سب سے اچھی کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولو. جب ساون میں بادل چھائے ہوں. جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت ہم شاید اس کو اتنا انجوائے نہیں کرتے, لیکن جب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں سڈنلی کہ یار یہ تو بڑے ہو گئے. مطلب ہم ان کو مس کر رہے ہوتے ہیں چھوٹوں کو نا. دولت سے انسان زندہ ہے اور اس شہر میں دولت مند وہی ہے جس کی اب تک ماں زندہ ہے. محبت, عشق, پیار ہم سب کو ہوتا ہے. کہ تم ہی ہو اب تم ہی ہو زندگی اب تم ہی ہو. خوشیوں کا سما اپنوں کے ساتھ دیکھتے رہیے صبح سویرے سما کے ساتھ. جینے کا مزہ تو صبح میں ہے. السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو صبح سویرے سما کے ساتھ. جی ہاں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ آواز تو بالکل بھی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, خیریت سے ہے. ویری گڈ. گڈ مارننگ ہو چکی ہے. میرے اپنے جو مجھے گھر پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. میں آپ لوگ کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ لوگ کی دعائیں, آپ لوگ کا پیار, آپ لوگ کے میسج کے ذریعے میرے پاس آ رہا ہے. ڈھیر سارے میسیجز, ڈھیر ساری فون کالز. تھینک یو سو مچ. پلیز آپ لوگ اسی طرح مجھے فون کالز اور میسیجز کرتے رہیے. ویسے میں نے سوچا ہے کہ آج سے میں اپنے شو میں آپ لوگ کے میسیجز بھی پڑھوں گی, ٹھیک ہے؟ تو پلیز بھرپور مجھے میسیجز کریں اور کالز کریں. ایک اور چیز میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ آج بھی میں نے عائشہ سمایہ کا یہ لان سوٹ پہنا ہے, 3 پیس لان سوٹ, جو کہ اویلیبل ہے ان آل دا لیڈنگ سٹورز. اور یہاں پہ بھی میرے پاس کچھ لان سوٹ موجود ہے آپ لوگوں کو دینے کے لیے. کچھ چھوٹے سے سوالات پوچھوں گی, کچھ جو کل کے شو سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ لوگوں نے ان چھوٹے سے سوالوں کے صحیح جواب دیے تو یہ لان کے جوڑے آپ کے بھی ہو سکتے ہیں. میں ایک تھوڑا سا کلوز ایک دکھا بھی دوں کہ یہاں پہ کون سا کیمرہ مجھے کیچ کر رہا ہے. یہ دیکھیں, اتنے مزے کے کلرز ہیں اور یہ جو ہمارا آج کل کا موسم ہے اس سے بھی بڑے ریلیٹڈ ہے. تو ناظرین, یہ تو ہو گئی ہماری کچھ لان اور ان ساری چیزوں کی بات, لیکن ہمارے پاس ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے آپ لوگوں کے لیے. آج کا پیغام آئیے چل کر دیکھتے ہیں. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اس کے ہر معاملے اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اگر اس کو خوشی اور راحت و آرام ملے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے.
और अगर इसको कोई दुख और तकलीफ मिले तो वो इस पर सब्र करता है, और ये सब्र भी इसके लिए सरासर खैर और बरकत का सबब है। जी ऑडियंस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां तो आप लोगों ने बजाई हैं, लेकिन मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगी कि आज के पैगाम से आप लोगों ने क्या सीखा? कौन सुन रहा था गौर से? हाँ, आज के पैगाम से आप लोगों ने कुछ सीखा? यहाँ पे मेरी ऑडियंस इतनी डेड क्यों है? चलो ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा चांस देती हूँ कि आप अगर आप लोगों को लॉन के जोड़े चाहिए तभी मैं ख्याल से तब आएगा आप लोग के जहन में सब कुछ। तो ये कैसी बात है, मैं आपको बताती हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है ये छोटी मोटी चीज़। लेकिन आज के पैगाम के लिए अब आप गौर से सुने, और मैं अपनी ऑडियंस को भी ये बताना चाहती हूँ कि मेरा और मेरी टीम का मकसद यही था आज के पैगाम के लिए कि अगर आप लोग किसी की चीज़ बुरी लगती है तो वो आप लोग, इससे बेहतर है कि आप लोग पीठ पीछे बुराई करें, उनको मुंह पे बोल दें, ठीक है? क्योंकि ये होती है गीबत करना ये। और हम अगर अपनी छोटी छोटी अच्छाइयाँ ही करेंगे तो अल्लाह मियाँ खुश होते हैं, ठीक है? बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की मैं बात नहीं कर रही, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे ऑडियंस से बताए कि कौन यहाँ पे पीठ पीछे बुराइयाँ करता है। देखो सच बोलना है, सच बोलेंगे। आप बोलो। मैं नहीं करती। नहीं करती हो? प्रॉमिस आप करते हो? नहीं करते हो? कभी भी ये नहीं बोला यार वो देखो यार ये शर्ट पहन के आ गया था यार, मीन्स के क्या मेरे पास क्यों नहीं, और इसकी तो नहीं, कभी भी नहीं बोला। शरीफ ऑडियंस, बहुत ही, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। कोई सच बोले, मुझे बताओ। ये ऐसा हुआ है जैसे कि उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि यार वो ऐसी है या वो ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं। वैसे मजाक भी उड़ाना है तो मुंह पे उड़ा लो, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग के दोस्त ही होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप नहीं जानते और फिर भी उनके बारे में बुराइयां करते हैं और बोलते हैं या बात करते हैं। जी हाँ, हमें मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाते हैं। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग को सुनने में आया हो, किसी दोस्त ने आपको बोला यार वो तो तुम जब गई थी ना तो तुम्हारी इतनी बुराइयां कर रही थी? कभी हुआ है? इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं, दूसरे बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, आप मुझे बताओ कि इस तरह कभी हुआ है कि आपको बाद में पता चला हो कि आपकी बुराई हुई है? जी जरूर हुआ है, काफी टाइम हुआ है, काफी दफा हुआ है जी। तो क्या फिर आपको बुरा लगता था? नहीं, मैं कोई रिएक्ट नहीं करती, इग्नोर कर देती थी, पीठ पीछे बोलने, फेस बहुत पे। अच्छी बात है इग्नोर करना। लेकिन किसी को दुख होता है कि यार ये मेरी तो इतनी अच्छी दोस्त थी, दिल में आता होगा। फिर ये भी होता होगा कि आपकी जो बीच वाली दोस्त है वो 3-4 और लगा के बता रही हो, होता है कि नहीं होता? हम तो बताते हैं उनको आगे से वो अच्छा करें। लड़कों के साथ देखिए, लड़कियों के साथ तो ये बड़ा कॉमन है, लेकिन ये लड़कों के साथ होता है कि नहीं होता, मैं ये जानना चाह रही हूँ। ये लो, अब माइक पे बोलो। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। आप लोग समझते हो कि यार दोस्त ये जो है इस तरह बैठे होते तो पीठ पीछे बुराइयां नहीं करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा, लगता है कि मुझे अपने जासूस भेजने पड़ेंगे इनके घर, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? फ्रेंड्स जो है एक दूसरे की गिबत नहीं करते हैं, मगर हर्ट जरूर करते हैं। एक सेकंड बोलने दे। फ्रेंड्स लड़कों में जो होता है वो गिबत नहीं करते हैं, मगर एक दूसरे को हर्ट जरूर करते हैं। क्या कर सकते हैं? हर्ट करते हैं। अच्छा, हर्ट करते हैं तो वो भी हर्ट करते हैं। तो लो, ये अच्छा है ना कि आप लोग को, इससे बेहतर कि आप लोग को पीठ पीछे ये चीज पता चले, आपको सामने ही पता चल जाए, है ना? ये बेहतर होता है ना? तो आप लोगों ने कभी बुराई की है? बुराई नहीं की है यार। ये तो वो सुहेल भाई, मुझे वो मीटर चाहिए, वो जो लाइन मीटर होता है। सीरियसली यहाँ तो कोई सच बोल ही नहीं रहा, कमी होता है। माइक पे बोले ना, माइक पे ये इधर दे। हाँ, क्या आजकल लड़के बराबर के शरीक हैं। अच्छा, मेरा ये चलो, ये पैगाम तो आप लोगों को सब समझ में आया, लेकिन इस पैगाम से और आप लोगों से इस इंटरेक्शन के बाद मैं उस पे आ रही हूँ कि कोई सच क्यों नहीं बोलता? क्योंकि मैंने तो की, मैं अवॉइड करती हूँ मैं, लेकिन ये बोलती हूँ कि कभी कभार निकल आती है बात, कि कभी छोटी सी बात हो या कुछ हो, लेकिन मैं बहुत सीखती भी हूँ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। बैक ऑफ माइंड ये होता है, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन मैं सच है जो चीज़ हर कोई बोलता है, यहाँ पे सच क्यों नहीं बोल रहे? नहीं बोलते, बस जैसे चल रहा है बस चलने दो। हाँ, मुझे तो कोई बुरा भी लगता है तो मैं उसको अच्छा बोल देती हूँ। हाय स्वीट, आई मीन की तो बहुत ही
ये क्या है? इनका इखलाक है। हाँ, इखलाक तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन प्यार मैं से समझा देती सुहेल हूँ भाई इसको। यहाँ पे थैंक यू सो मच, आप लोग के लिए ढेर सारी तालियां। लेकिन मैं जो है सुहेल भाई, मुझे एक वो मशीन चाहिए लाइव मीटर वाली। यहाँ कोई सच बोल ही नहीं रहा। वो पाकिस्तान में क्यों नहीं है मशीन? सुहेल भाई ने अभी भी मुझे बताया कि वो पाकिस्तान में मशीन ही नहीं है, लेकिन हम मंगवाएंगे, इस चीज़ पे हम इन्वेस्ट करेंगे और फिर आप लोगों से पूछेंगे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लेकिन प्लीज़ अगेन मेरा यही मैसेज है और मेरी टीम का यही मैसेज था आज के पैगाम पे कि प्लीज़ कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग बिल्कुल ही एकदम से फ़ौरन सब कुछ हो जाता है ज़िंदगी में, लेकिन आप कोशिश करें, एक स्टेप बढ़ाएं आगे कि आप लोग किसी के पीठ पीछे बुराई मत करें। अगर कुछ बुरा लग रहा है तो उसको मुंह पे बोल दें। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बंदा हर्ट होगा, बट एटलीस्ट ये होगा कि आप गीबत से बच रहे होंगे और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ अपने आप से ये चीज़ को ख़त्म करें। इसके साथ साथ मैं कुछ मैसेजेस हैं, अब मेरे जो फेसबुक पे मैसेजेस आए हैं हमारे सुबह सवेरे के पेज पे, आप लोग भी जाके उस पे मैसेजेस कर सकते हैं और मुझे तनकीद भी कर सकते हैं। कुछ नए आइडियाज़ हैं तो वो भी बता सकते हैं, कुछ शोज़ के टॉपिक्स होते हैं वो भी आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है क्या खूबसूरत, हमारी जो टॉपिक है आज का, क्या खूबसूरत आधी कामयाबी होती है। तो ये मैसेजेस कुछ है, क्या खूबसूरती आधी कामयाबी होती है, उसके बारे में हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं। अनक राना, खूबसूरत होने से इंसान कामयाब नहीं होता। बहुत अच्छी बात बोली, इसके यहाँ मुझे कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, बोली है। थैंक यू सो मच अनक राना। अरक की तरफ से मैसेज है, किसी हद तक हमारा मुआशरा खूबसूरती को तंजीद देता है, तंज करता है, लेकिन खूबसूरती ही सब कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात, खूबसूरती ही सब कुछ नहीं। हैप्पी हसन का मैसेज है हैप्पी हसन का मैसेज आया है, खूबसूरती से आदमी कामयाब नहीं होता। वेरी गुड, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मैं अपने शो में पढ़ती रहूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। वैसे मैं आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग के मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया, इस प्यार का। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मैं आज जब सुबह आ रही थी तो मेरे जो ये टॉपिक था हमारा आज का, ये मेरे जहन में चल रहा था। तो इससे मुझे थोड़ा सा ये आया कि जो इंसान होता है वो अपनी लुक्स के बारे में काफ़ी सेंसिटिव होता है। जैसे कि हमें किसी तकरीब में जाना हो, किसी शादी में जाना हो, तो हम उसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर देते हैं। जैसे कि किस तरह दिखना है, क्या पहनना है। लोग बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है, अच्छा दिखना चाहिए, अंदर से आप बंदे को खुशी होती है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि क्या खूबसूरत होना ही सब कुछ है? मेरा मतलब है कि क्या और भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट होती हैं कामयाब होने के लिए या नहीं? इसी बात पे हम आपको एक यहाँ पे इस टॉपिक की जो रिलेटेड चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास आपके पास कुछ है दिखाने के लिए, आइए चलकर देखते हैं। लाख चेहरा सही चांद जैसा, दिल के कालों से अल्लाह बचाए। हुस्न परस्ती इंसान की फितरत का एक हिस्सा है। इंसान अल्लाह ताला की अफजल तरीन मखलूक है, जिससे अल्लाह ने हुस्न समेत बेशुमार खुसूसियात से नवाजा है। खूबसूरती को पसंद करने में कोई शायबा नहीं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि लड़कियों को नौकरियां और तरक्कियां सिर्फ इसी बुनियाद पर मिल जाती हैं। क्या फकत जाहिरी खूबसूरती के बिना पर कामयाबी मुमकिन है? बात खूबसूरती की हो और हमारे मुल्क के खूबसूरत तरीन चेहरों का जिक्र न हो, ये मुमकिन नहीं। बाबरा शरीफ, समीना पीरजादा, ज़ेबा बख्तियार, रीमा खान, महविश हयात और अयान अली जैसे बेशुमार नाम हैं जिन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। लेकिन इन बासलाहियत खवातीन की कामयाबी में इनकी खूबसूरती का कितना हाथ है? क्या वाकई खूबसूरती कामयाबी के सफर का आधा रास्ता तय करवा देती है? बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरती आधी कामयाबी, ये है आज का हमारा टॉपिक और आज हम ये जानेंगे, इस चीज़ के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ पूछेंगे
हमारे अपने मोहतरम गेस्ट से। तो बगैर टाइम वेस्ट करके मैं मिलवाती हूँ सबसे पहले रुबीना आंटी को। हमारी बहुत सीनियर एक्टर हैं, हम सबकी फेवरेट है, मेरी बहुत फेवरेट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी है रुबीना आंटी? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारे साथ हमारी समर फैमिली की मेरी कोलीग है, बहुत हम लोग मस्तियाँ करते हैं मेकअप रूम में। रमशा, कैसी हो रमशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर कमिंग। हमारी तो गुड मॉर्निंग काफ़ी पहले से हुई हुई है। हमारे पास यहाँ पे है माइंड साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर मोइज साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे पास यहाँ क्यूट सी बबली सी और मेरी बहुत ही पुरानी दोस्त किरण, है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं जब दोनों शायद शोबिज़ में नहीं थे। जब दोनों शोबिज़ में नहीं थे, एग्जैक्टली तब से जानते हैं। और यहाँ पे मेरी खाला कम चाची सारे रिश्ते भी यहाँ पे मौजूद है ना? Of course. उसके बाद आज अभी थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ क्योंकि अभी घबरा रही हूँ। No, but I have to compliment you on the show. तुमने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, बहुत अच्छा करियो। दिस इज आई थिंक योर फर्स्ट वीक, सेकंड वीक एंड सेकंड डे ऑन दिस सेट। यहाँ इस सेट पे दूसरा दिन है। उस लिहाज से अगर देखें तो वेरी वेल डन। एंड आई थिंक हर इंसान को जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है ना कि अच्छा ये वाला काम मेरा काम है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी इट फॉर यू। ग्रेट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना आंटी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं हमारी टॉपिक की तरफ कि खूबसूरती आधी कामयाबी है या नहीं। क्या कहेंगे रुबीना आंटी? देखिए, खूबसूरती को डिनाई तो नहीं कर सकते बिल्कुल, और उसकी कामयाबी को भी डिनाई नहीं कर सकते। खूबसूरती अल्लाह मियाँ ने जिन लोगों को खूबसूरत बनाया है उनको अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आधा काम उनका हो जाता है ये तो है। लुक्स से। So the people who are not as good looking as some of the blessed ones are, उनको ज़रा सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़रा सा ज़्यादा compete भी करना पड़ता है। But having said that, खूबसूरती ज़िंदगी में कामयाबी या अल्टीमेट जिसको कहते हैं खुशी या कोई भी चीज़ जो हम ज़िंदगी में जिन चीज़ों को कहते हैं ना अचीवेबल हैं या इंसान की खुशी के लिए जरूरी हैं। हाँ, दो चार चीजें, अगर आप अपने आप को खुश महसूस, कामयाबी, खुशी, ये सब चीजें जो हैं उनका खूबसूरती से कोई ताल्लुक नहीं। तो आप बताएं रुबीना आंटी कि जब आपने शोबिज़ ज्वाइन किया, बिकॉज शोबिज़ में तो ये बड़ा होता है कि यू हैव टू हैव लाइक गुड लुक्स, अगर आप इतना अच्छे हैं तभी आप शोबिज़ में आ सकते हैं, अगर आप नहीं हैं ऐसा कब कहाँ क्यों कहाँ होता है? आजकल तो इतना आपके ज़माने में शायद देखिए, हाँ हम इसलिए मैं वो पूछना चाह रही हूँ। The first impression एज ए डायरेक्टर, आप डायरेक्टर भी हैं, आप प्रोड्यूस भी करती हैं, यू आर अ डायरेक्टर। अगर मैं आपके पास 4 पिक्चर्स दे दूं जिसमें से 2 सावली हैं, थोड़ी सी इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, और 2 अट्रैक्टिव लड़कियां हैं, मेरा ये मतलब नहीं है क्योंकि खूबसूरत तो हर कोई होता है, बिल्कुल ठीक कह रही हो, जो भी है। तो अगर इस तरह से तो आप एज अ डायरेक्टर किसको चूज करेंगे, क्या देखेंगे? पहले रिएक्शन में ऑफ कोर्स द प्रिटियर वन, बट देन देयर इज ऑलवेज अ सेकंड स्टेप। उसके बाद मैं जाहिर है उनको उनसे रीडिंग लूंगी या जो भी ऑडिशन लूंगी। उसके बाद ऐसा हुआ अभी रिसेंटली, अच्छा, this very pretty girl that I was auditioning for a display that I'm starting, और and I said no go back, and I felt bad because she was so pretty, क्योंकि खूबसूरत थी लेकिन उसमें टैलेंट नहीं था। ये भी होता है, ये भी बहुत होता है कि आप बेशक खूबसूरत हो लेकिन आप में टैलेंट की ब्यूटी विद ब्रेन्स, या डेफिनेटली ब्रेन्स नहीं चलेगा इतना। लेकिन हाँ, ये है कि खूबसूरत लोग। अब मैं इधर डॉक्टर मोइज साहब से भी पूछना चाहूँगी। डॉक्टर मोइज, आप बताएं कि हमारे सिर्फ मीडिया नहीं, काफ़ी लोग ऑफिसेज जाते हैं, काफ़ी ऐसे काम है जैसे रिसेप्शनिस्ट होते हैं, सेक्रेटरीज होती हैं, एंड सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं लड़के भी। तो क्या ये उनको प्रॉब्लम होती है एक नौकरी लेने में या नौकरी हासिल करने में? डिफाइन द वर्ड खूबसूरत। ये जो खूबसूरत वर्ड है इसमें 2 लफ्ज़ हैं, एक खूब और एक सूरत। यानी वो सूरत जिसको देख के आप कहें खूब, इसको आप खूबसूरत कहते हैं। इसमें रंग का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये रंग हमने बना लिया है क्योंकि इस बड़े सगीर में अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की, उनका रंग गोरा था तो हमने खूबसूरती को गोरे रंग के साथ तशबीह दे दी, ताबीर कर दी। और कहते हैं कि गोरों को जो है वो सावले रंग के लोग ज्यादा पसंद आते हैं, इसीलिए वो टैन शैन कर रहे होते हैं। जो ऑलिव स्किन है यूएस वगैरह में, यूरोप के अंदर आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी समझी जाती है।
बहुत अच्छी एशियन स्किन या फिर ऑलिव स्किन जो स्पेनिश वगैरह की होती है। अच्छा, तो लफ्ज खूबसूरत को हमने एक अलग मतलब ले लिया। अब दूसरा डिफाइन करें, अल्लाह जो है वो हसीन है, बेशक, ठीक है, और वो जो भी तख्लीक करता है चीज़ वो हसीन चीज़ करता है। अब हम बज़ाहिर तो देखते हैं कि ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा लोग इतने, किसी की नाक टेढ़ी है, किसी को पैदाइश के वक्त प्रॉब्लम हुए, तो खूबसूरत से मुराद है वो चीज़ जो बैलेंस के अंदर हो। जी, ठीक है। अब एक स्किन बहुत अच्छी गोरी हो मगर आवाज़ जो है वो मर्दाना हो, कई दफ़ा ऐसा देखा है। अच्छा, ग्रेस, चलने का अंदाज, बात करने का अंदाज, आंखें, ये तमाम चीज़ें प्रोपोर्शनल हो तो उसे खूबसूरती कहा जाता है। अच्छा, जी जी, मैं आपको मिसाल दूं, एक हमारे पास कुछ अर्से पहले बहुत ही खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट थी हमारी। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, यानी वो ऐसी थी कि लोग आते तो रुक जाते थे, मगर काम बिल्कुल बेकार था। तो अभी हमारे पास जो रिसेप्शनिस्ट है, क्या वो काम बिल्कुल बेकार देखा जा रहा है, तो बस वही उसके अंदर हो जाता है ना। अच्छा, तो इसमें डॉक्टर साहब की एटीट्यूड प्रॉब्लम भी आ जाता है, वो गुरूर आ जाता है कि मैं तो बड़ी खूबसूरत हूँ और मुझे ही सब देखते हैं, तो काम से क्या लेना देना, मींस कि मेरी इतनी चर्चा वैसे ही है तो मैं तो वैसे ही मशहूर हूँ, तो काम वाम को साइड पे रखो। इन्होंने बात की कि इन्होंने खूबसूरती देख के ही सेलेक्ट किया। आपने खूबसूरती देख के सेलेक्ट किया था? शक्ल देख के। डॉक्टर साहब, आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं क्या? लोग परेशान होते हैं? मैंने सुना है कि शादी जब हो रही होती है तो काफ़ी लड़कियां और काफ़ी लड़के इस चीज़ के लिए बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड होती है कि सबसे पहले ये डिमांड होती है कि खूबसूरत होनी चाहिए, शक्ल अच्छी। अम्मा जब सेलेक्ट कर रही होती है अपने बेटे के लिए, सबसे पहले उसे खूबसूरती चाहिए, रंग वाली खूबसूरती चाहिए, रंग वाली। किरदार इखलाक का तो पता चलता है जब लड़की घर में आती है। और अपनी बेटी के लिए? अपनी बेटे के लिए उसे कोशिश होती है कि मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे घराने में हो। नहीं, तब भी खूबसूरत दामाद चाहिए। नहीं तो चाहे जैसे भी हो, मोटी हो, काली हो, उनको चाहिए कि खूबसूरत दामाद भी हो, खूबसूरत बहू भी घर में आए। अच्छा, आपको पता है इस वक्त दुनिया में, मैं भी आपकी ऑडियंस से कुछ देर पहले बात कर रहा था, मैंने कहा सच बताए लड़कियां जो है सच ही नहीं बोला जा रहा, ऐसी हैं जो रंग गोरा करने वाली क्रीम इस्तेमाल करती है। इन्होंने मना किया। मैं पूछूंगी ये क्या, मुझे अभी मैं बल्कि पूछना चाह रही हूँ, कौन है जो कि बताएंगे? कोई भी नहीं बताएगा। नहीं बताएंगे। मैंने स्कूल कॉलेज के जमाने में जरूर इस्तेमाल, मैंने भी इस्तेमाल की है। मैं बोल रही हूँ कि मैंने भी इस्तेमाल की है। और हकीकत वो अलग बात है कि वो जो है वो यूज में नहीं है, काम नहीं आई। और रुबिया, मैं आपको बताऊं, रंग गोरा करने वाली क्रीम इस वक्त पाकिस्तान में और इंडिया में और ये जो एरिया है हमारा, इसमें सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है रंग गोरा करने वाला। जी, मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी। रिसेंटली अभी मुझे एक ऑफर आई थी ऐड के लिए, तो मैंने कहा कि आप लोग, बाकी में मैं ऑफ कोर्स मैं प्रोडक्ट नाम नहीं यूज़ करूंगी, पर उस ब्रांड के लिए मैंने कहा कि आर यू गाइस श्योर कि आप लोग मुझे ही लेना चाहते हैं? तो क्या करेंगे, क्या मेकअप शेकअप से करेंगे? कहते हैं नहीं इस तरह की कोई बात नहीं। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, बट अब मर्दों के लिए भी है। बाकी में हमारे पास एक और भी है। अस्सलाम वालेकुम, आसिफ कराची से, मिसेज आसिफ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आसिफ, मिसेज आसिफ कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया है इतने कॉन्फिडेंस से, और मेरी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। और आपके लिए मैं एक शेर सुनाऊंगी जहाँ जी बिल्कुल प्लीज, जी बिल्कुल, बहुत बहुत। रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसी है, वो रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसी है, वो लड़की धूप में देखो तो छांव जैसी है। ये बहुत ही खूबसूरत हमारे टॉपिक से भी रिलेट। जी प्लीज मिसेस, आपसे क्या कह रही हैं? मैं कह रही थी कि मैं आपके लिए, मेरे लिए कोई क्वेश्चन है गिफ्ट? ओ जी बिल्कुल, आपसे तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। इतना अच्छा शेर सुना है। कर लूं? आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने मेरा कल का शो देखा था या नहीं? बिल्कुल, वो था। खुश कैसे रहे? अब बिल्कुल, वेरी गुड, अच्छा ठीक है। आपने मुझे बस ये बताना है, जल्दी से बताएं कि मैंने कल कौन से रंग का जोड़ा पहना हुआ था? आपने व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था और कुछ ब्लू टच भी था उसमें। वेरी गुड। ये लोहन का जोड़ा आपका हुआ। प्लीज हमारी टीम को डिटेल्स लिखवाएं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपके पास पहुंचेगा। हमारे पास एक थैंक यू सो मच मिसेस आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसी तरह दुआएं देती रहें। यहाँ पे लेनी है हमें एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन बहुत सारी गपशप अभी भी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें पूछनी है
اور جب تک آپ لوگ بریک لے رہے ہیں میں تھوڑی سی اپنی آڈینس کو بھی جگاتی ہوں. We'll be right back. یہ فیکٹر ہو سکتا ہے کیونکہ کم عقلی میں انسان جو ہے وہ دھوکہ بھی کھا جاتا ہے اور کم عقلی میں انسان جو ہے فریب کا بھی شکار ہو جاتا ہے. نہیں رکاوٹ تو خیر نہیں ہے, آدمی اپنے آپ کو اوور کم کر سکتا ہے, کوئی اتنی بڑی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کم عقلی کامیابی کے لیے. بالکل بالکل کم عقلی بالکل کامیابی میں رکاوٹ بنتی ہے, یہ بات تو ہے. کم عقلی کامیابی میں رکاوٹ نہیں ہے. انسان کی کم عقلی اس کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں ہے. کم عقلی انسان کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں کرتی. ویلکم بیک ناظرین, a very good morning once again. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے بہت ہی خوبصورت, گلیمرس اینڈ ایلیگنٹ نادیہ حسین نے. السلام علیکم نادیہ, کیسے ہیں؟ بس ٹھیک ٹھیک ٹھاک. گڈ مارننگ ہو چکی ہے. گڈ مارننگ. یس یس بالکل صبح صبح کو ہو جاتی ہے. نادیہ تھینک یو فار کمنگ. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے خوبصورتی آدھی کامیابی. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہمیں کامیاب زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے؟ خوبصورتی زیادہ ضروری ہے؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. آئی مین خوبصورتی تو میں جس طرح سن رہی تھی تھوڑا سا جب میں باہر تھی, روبینہ آپا نے جس طرح کہا کہ خوبصورتی تو نو ڈاؤٹ اللہ کی دین ہوتی ہے. اسی ہم لوگ کے اوپر کوئی ہم پرسنلی ہم لوگوں کا کوئی کمال نہیں ہے, کوئی کمال نہیں خوبصورت ہونا, لیکن آپ اپنی پرسنالٹی کو, اپنی سٹائل کو, اپنے آپ کو جب آپ گروم کرتے ہیں تو آپ یو کین آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بائی یو کین لک بیوٹیفل بائی, اگر آپ کی اچھی گرومنگ ہو, آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ شائن کرے گی تو آپ آٹومیٹکلی خوبصورت لگیں گے. سو اس کا ایز سچ ڈائریکٹ ریلیشن آپ کی لک سے نہیں آتا ہے, لیکن اوور آل جو ہے وہ دیکھنے میں جو ہے آپ اگر خوبصورت لگیں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں پھر ایک ہاتھ آتا ہے کامیابی میں, بیکاز ایک صرف لکس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت ہی کوئی خوبصورت لڑکی ہو لیکن وہ اس کی پرسنالٹی نہیں ہے, اس کی گرومنگ نہیں ہے, اس میں ایک کانفیڈنس نہیں ہے, تو وہ یہ ساری چیزیں کرنے سے, جیسے کہ آج کل بیکاز آپ بھی ایک کلینک چلا رہے ہو ماشاءاللہ سے, تو آج کل جو ہماری لڑکیاں ہیں وہ زیادہ تر چاہ رہی ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کی چیزیں کرائیں کہ ہم لوگ خوبصورت لگیں اینڈ آل آف دیٹ. ہماری کافی شعبے سے بھی تعلق یہاں کی باہر کی ساری کوشش کرتی ہیں کہ ہم جو اپنے جو آلریڈی کامیاب ہیں وہ اور کوشش کرتی ہیں کہ میں اور خوبصورت لگوں. تو وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ کامیاب تو وہ ہیں, تو آگے کیا وہ اور کامیاب ہونے کے لیے وہ چیز کر رہی ہوتی ہیں یا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے, یا میں اور اچھی لگوں, یا وہ کمپٹیشن ہوتا ہے؟ میڈیا میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا تو نو ڈاؤٹ دیر از اے لاٹ آف ان کے اوپر بہت آلریڈی بوجھ ہوتا ہے کمپٹیشن کا, بیکاز اٹس اے ویری کٹ تھروٹ کمپٹیشن. یہاں پہ میڈیا انڈسٹری میں جو ہے, چاہے وہ آپ ایکٹنگ میں لے لیں, چاہے آپ مطلب ماڈلنگ میں لے لیں, چاہے آپ کسی بھی میڈیا کی یا فیشن کی یا شوبز کے کسی بھی ادارے میں جو ہے وہ کافی کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوتا ہے. تو it's not just the looks that matter, it is of course also the talent that matters. لیکن یہ کہ اگر آپ کے ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے لکس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں تو then there is no harm in doing that, because آپ کی پھر ایک جو شیلف لائف ہوتی ہے اس انڈسٹری میں وہ بڑھ جاتی ہے. کہ اگر آپ مطلب ایکٹنگ میں جو وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. it doesn't matter کہ اگر آپ خوبصورت ہو, اچھے دکھنے والے ہو یا نہیں, کیونکہ اس میں آپ کا ٹیلنٹ زیادہ شائن کرتا ہے. لیکن فار ایگزامپل ایک وقت ایسا ہوتا ہے لائک کہ جب جو فار ایگزامپل اگر ہم خواتین کی بات کریں تو ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ لیڈنگ رولز یا لائک جو مین کیریکٹر رولز ہوتے ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے شارٹلی, وہ بہت شارٹ لیفٹ پیریڈ ہوتا ہے فار اینی وومن ان کوئی ایکٹریس کے لیے, اس کے بہت عرصے تھوڑے عرصے کے بعد then she moves on to character roles, اور اس کے پھر تھوڑے عرصے کے بعد then she'll move on to doing like nانی دادی کے roles, even though she's not that old, she's not that old, she could be 45 years old but she's doing پھر وائٹنر بھی لگا لیتے. روبینہ جی آپ تھوڑا سا بتائیں اس چیز کے بارے میں, کیونکہ یہ بڑا کامن ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اتنے اولڈ ہے نہیں لیکن آپ کو اتنا اولڈ بنا دیا جاتا ہے. تو پھر میرے خیال سے یہ she had a point there when she said کہ دیکھیں
लोगों को भी एक अरसे तक किसी को देखने की आदत होती है ना, थोड़ी देर बाद फिर वो बोर हो जाते हैं एंड देन दे वांट समबडी न्यू। सो नए, और फिर जाहिर है एक इंडस्ट्री है, उसको चलना है, उसमें नए लोग आने हैं। नॉट जस्ट हियर, नॉट जस्ट इन टेलीविजन, दुनिया में यही होता है, हॉलीवुड बॉलीवुड में नए लोग आते रहते हैं और इतनी तेजी से आते हैं, हमारे तो बल्कि सस्टेनेबिलिटी ज्यादा है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे किसी प्ले को या किसी प्रोडक्शन को या किसी यू नो लाइक प्रोडक्शन की कामयाबी को मैं डाउट नहीं करूँगी, ठीक है, लेकिन मुझे याद है कि जब हम सफ़र जो था, जब रिकॉर्ड हो रहा था, उस वक्त उसके सारे एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर सब ने कहा कि जी बस नॉर्मल प्ले है, बस खूबसूरत लोग हैं उसके अंदर। वो कामयाब जो था वो क्यों हुआ? नॉट बिकॉज उसकी स्टोरी कोई बहुत ही ज्यादा आला थी, इट वॉज अ नॉर्मल रेगुलर स्टोरी, लेकिन उसमें खूबसूरत लोग थे। आप अतीका ओडो को देखे, आप हिना बायात को देखे, माहिरा को देखे, फवाद खान था उसके अंदर। आई मीन माय गॉड, ऑल यू नो बहुत ही मेजर बात कही आपने। लेकिन ये बात खुद मुझे सनमद ने बोली थी। हम लोग किसी मॉर्निंग शो में जो थे, वो हम लोग मॉर्निंग शो से वापस आ रहे थे, तो उसने मैंने ऐसे जस्ट यू नो जनरली पूछा कि क्या हो रहा है आप कहना चाह रही नो ऑन जस्ट द सेम, वो सारे खूबसूरत लोग अगर भोंडी एक्टिंग कर रहे होते ना तो जा पड़ा था। वो तो है ही है, वो तो है, लेकिन they did justice to whatever they were supposed to do. I'm not doubting at all किसी की। जी डॉक्टर साहब, अभी जो पैकेज चला था ना, हम बात कर रहे थे, हम इनफैक्ट मैं और रूबी नाज रहे थे, इस पैकेज के अंदर अक्सर लोग कहते हैं कि जी कम अकली जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खूबसूरती इंपॉर्टेंट है। तो मुल्क का हाल इसी वजह से बुरा है कि यहाँ पे अकल पे फोकस नहीं है। हम बेसिकली खूबसूरती को, मैंने जैसे स्टार्ट में कहा कि रंग से ताबीर करते हैं, कलर से। ठीक। जिस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए उसे कहते हैं करिश्मा। ओके, ठीक है। वो जो करिश्मा अगर किसी शख्स में होता है, चाहे उसकी एक्टिंग में हो, उसकी आवाज में हो, उसकी चाल में हो, उसकी शख्सियत में हो, उसकी आंखों में हो, तो वो जो खूबसूरती है ना, वो असल चीज वो होती है कि वो अपनी प्रेजेंस कहीं पे भी जाता है तो उसके एक पर्सोना ऐसा है कि लोग उससे मुतासिर होते हैं। डॉक्टर मोइज, आपके लिए कॉल है, बात कर लो। बात कराओ जी। करे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ओह जी, मेरी बेटी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम उरूज, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आई एम फाइन, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू उरूज। क्या अच्छा आप मुझे ये बताओ कि थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया उरूज। बाबा से बात करोगी या हम सब से, या डॉक्टर मुइज से आप बात करेंगी या फिर हमारे गेस्ट से? डॉक्टर मुइज से तो पूरा दिन मैं बात करती हूँ, सबसे बात करूंगी। जी बिल्कुल, किससे बात करना चाहोगी? And it is beautiful what you are talking about. तो मैं सिर्फ देख रही थी और सुन रही थी। आप क्या कहोगी टॉपिक के बारे में उरूज? एक स्टेटमेंट हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द होल्डर। ब्यूटी और ब्यूटीफुल, बीइंग ब्यूटीफुल इज जस्ट अ परसेप्शन, सिर्फ परसेप्शन हमारा कि कौन हमें खूबसूरत लगता है और कौन नहीं लगता। और दूसरी बात, एक छोटा सा किस्सा है, वो सुना के आई विल हैंग अप माय फोन। बिल्कुल जरूर। एक वर्ल्ड मॉडलशिप जो होती है ना, यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जो बनते हैं, उसके अंदर देयर वाज अ ब्लैक गर्ल, वो 4th आई थी, यानी 4 का हो रहा था, उसमें 3 सिलेक्ट हुई। ओके। तो उससे एक सवाल पूछा गया, आपको क्या लगता है कि आप खूबसूरत क्यों हो? तो उसके खुदा की बनाई हुई कोई चीज बदसूरत तो हो नहीं सकती, तो मैं भी खुदा की बनाई हुई और मैं बदसूरत हो नहीं सकती। सुभान अल्लाह। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, हो येलो कलर है, ब्लैक कलर है, टैन कलर है, व्हाइट कलर है, इट कैन नॉट बी ugly, it cannot be something other than beautiful. क्योंकि सब कुछ खुदा ने बनाया है. But how we perceive beauty is just a perception. Very good. Thank you so much. थैंक यू सो मच उरूज। रमशा आप कुछ बोल रही थी? मैं मोमली आपसे ये कह रही थी कि जैसे अभी उरूज ने बात की है कि वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मुझे अल्लाह ताला ने बनाया तो मैं खूबसूरत हूँ। और हम जब बाहर ममालिक में जाते हैं, और नादिया शायद मेरी बात से अग्री करें कि जब मॉडलिंग होती है या मॉडल हंट होता है तो उसमें सबको चांस दिया जाता है, फिर वो ब्लैक वाइट नहीं देखते। जब हम वेस्टर्न ममालिक की अगर मैं बात करूं तो फिर वहाँ वो ब्यूटी देखते हैं कि आप ब्यूटीफुल हो, आप में कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप को कैरी कैसा करते हो। ब्यूटी विद ब्रेन जो किरण ने बोला था। हमारे यहाँ जो एक गोरे रंग का होता है कि लड़कियां गोरी हैं तो ब्यूटीफुल है, लेकिन वहाँ आपके कट्स कैसे हैं, आप किस तरह से कैरी करते हो,
ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے شوز ہوئے, اس میں ایک ایسی ماڈل جیت گئی جو بہت ٹین ہے اور اس کے لپس بھی بڑے بڑے ہیں, اور لیکن شی لکس بیوٹیفل, وہ کیری اپنے آپ کو اچھا کرتی ہے, اپنے ہیئر اچھے کیری کرتی ہے, وہ چلتی ہے اچھا ہے. تو یہ چیز آپ کو کمپلیمنٹ کرتی ہے کہ آپ خود کیسے ہو, ہاؤ ڈو یو کیری یور سیلف, آپ اپنے آپ کو کیسا پریزنٹ کرتے ہو, کیسے بات کرتے ہو, اور آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ کیسا ہے, دیٹ میکس یو بیوٹیفل. آپ کو صرف یہ خوبصورتی ظاہری خوبصورتی نہیں ہوتی, خوبصورتی ظاہر ہونے کے ساتھ باطن میں بھی ہونی چاہیے. اگر آپ اندر سے خوبصورت ہو تو وہ بھی آپ کے اوپر بھی آتی ہے. میرے پاس ایک اور سوال یہ ہے کہ ہمارے جیسے پرانے زمانے کے ڈرامے ہوتے تھے, اس زمانے میں اتنی خوبصورتی کو نہیں دیکھا جاتا تھا, ٹیلنٹ پیور ٹیلنٹ ہوتا تھا, اور بھائی اگر آپ نے ایکٹنگ کر لی اور آپ وہ نیچرل ایکٹنگ جس کو کہتے ہیں وہ کر لی اور وہ کامیاب ہو جاتے تھے. تو کرن آپ کیا کہو گی اس بارے میں؟ ڈراموں کے حوالے سے تو نہیں, لیکن جنرلی جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں کچھ حد تک اگری کرتی ہوں کہ لکس ڈو میٹر, خوبصورتی اور سکسیس ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جب آپ اس فیلڈ میں آئی تھی تو میں آئی ہی تھرو بیوٹی پیجنٹ تھی, فیس آف دی ایئر مجھے ملا تھا, تو وہ بیوٹی پر ہی ملا تھا اور تبھی لوگوں نے جانا تھا. اور پھر ساتھ ساتھ آپ کی اپنا انداز ہوتا ہے, آپ کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کسی حد تک. اور انفیکٹ کافی ریسرچ بھی کی گئی تھی باہر کے ممالک میں, اور وہاں بھی یہ چیز سروے کے بعد یہ نتیجہ نکلا تھا کہ بیوٹی برنگز سکسیس ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, کیونکہ بہت سی جابس کی ریکوائرمنٹ ہی ہوتی ہے کہ آپ بیوٹیفل ہوں, آپ خوبصورت ہوں, گڈ لکنگ ہوں, جیسے ایروسٹس ہو گئے یا ریسیپشنسٹ ہو گئے, یا ہوٹلز اور ریسٹورینٹس میں, یا آپ کے ہماری انڈسٹری میں ہو گئے, یا ایڈورٹائزنگ میں جو بھی. تو یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, لیکن اوور اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اپنی بیوٹی کو کہ خوبصورتی ہے تو بس پھر سکسیس ملے گا ہی ملے گا. اچھا یہ تو بات ہو گئی ہماری میڈیا سے ریلیٹڈ, لیکن اگر ہم اپنی عام زندگی میں آتے ہیں, اپنے عام لوگوں کی بات کرتے ہیں جو نارمل جاب کرتے ہیں, عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو گروم اگر کریں, چاہے وہ اپنا ہیئر کٹ ہو, کلودنگ ہو. میں یہی آپ سے نادیہ پوچھنا چاہوں گی بیکاز آپ کا ماشاءاللہ سے اب سیلون بھی کھل چکا ہے, کھلنا ہے, اٹس ان پروسیس, سوری رانگ نیوز. اچھا, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کافی لوگ اس چیز کو جو نارمل ہمارے گھر میں ہماری مدرز ہیں, ہماری آنٹس ہیں اور بچیاں ہیں جو آگے بڑھ رہی ہیں, وہ اب اپنا خیال رکھنے کی طرف جا رہی ہیں. تو بالکل, آئی مین اوور آل آئی تھنک ایز اے نیشن ہم لوگ جو ہیں وہ بہت اب کانشیس ہو گئے ہیں اپنی لکس کے بارے میں, اپنی گرومنگ کے بارے میں, اپنے فیشن سینس کے بارے میں. جنرلی ہم لوگ بہت کانشیس ہو گئے ہیں, سو وچ از گڈ ایکچولی نا, کیونکہ یہ کانشیس ہونا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ سیلف obsessive ہو گئے ہیں. اس کا یہی مطلب ہے کہ جی آپ ایک ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی اگین اپنی کامیابی کی طرف. اگر آپ کی جاب ریکوائرمنٹ ہے کہ جی آپ اچھا لگے, آپ پریزنٹیبل لگیں, تو اگر آپ اب کے جو ہے وہ جتنے بھی نئے مالز کھلے ہیں, اگر آپ ان کے سیلزمنس کو دیکھیں, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, وہ میں یہ نہیں جج کری کہ جو وہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے, but they all look good. They all are, مطلب چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو, like اور خاص طور پہ میں نے لڑکوں کو دیکھا ایکچولی کہ وہ اچھی ان کی ٹونڈ باڈی ہوتی ہے, ان کا ہیئر کٹ اسٹائلش, لائک انہوں نے جیل اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں, بال اسپائک اپ, دے نو دا فیشن سینس, اور پھر جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے, جب وہ آپ کو کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار اگر یہ بیچ رہے ہیں تو شاید جو ہماری سیلزمین کیٹیگری ہے, آئی وڈ سے کہ they are a working class as well. But they are making a difference in their own lives. ٹھیک ہے نا, بیکاز انہوں نے اپنی اتنی گرومنگ کی ہے, ان کو اتنے ان میں سینس آف کانفیڈنس آ گیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ لائک فرام سیلزمین کیٹیگری دے ول کم انٹو مینیجریل کیٹیگری, اور وہ آگے بڑھتے کامیاب ہونے کے لیے بیکاز ان کو کانفیڈنس آ جاتا ہے اس چیز سے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہم بات جو کر رہے ہیں وہ پریزنٹیبل پرسنالٹی کی بات کر رہے ہیں. نادیہ نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے. دے مے ناٹ بی beautiful in the sense of the color, but the way they dress up and the way they talk and the way they walk, وہ بڑا ایک وہی اگین کیرزما کریٹ کرتا ہے. آپ اگر کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں the way they talk to you, وہ فوراً سے آپ کے ساتھ ایک ریپو, ٹیکنیکلی the word is repo, it's more like کہ اچھا آپ کس طرح بات بھی کرو, اگر آپ بالکل دھیمے سے بات کرو, اچھا ہاں دیکھ لیں پتہ نہیں نہیں, وہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. آپ بالکل ہی ایز اے کسٹمر آلسو آپ بالکل ہی کہو گے یار یہ تو سیلز مین کے لیے بڑا ضروری ہے, سیلز مین, اینی سیلز پرسن,
is that instantly a client comes in, आपको एक चीज, एक relationship develop करनी होती है, और वो instantly develop करनी होती है, और वो relationship जो होती है वो लाइफ टाइम रह सकती है, और वो जो client है वो फिर किसी और के पास नहीं जाएगा, will always come there. Secondly, हमारे यहाँ एक और चीज जो मैं चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से होनी चाहिए, सैलून्स हमारे पास बहुत हैं, और माशाल्लाह एक नया सैलून भी खुल रहा है, तो इसमें एक चीज जो होनी चाहिए जो कि मिसिंग है वो ये कि फेशियल भी होते हैं और सब कुछ होता है, रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए इंटरनल जो ये देखिए ना, स्पा में सिर्फ आंखें बंद करके वो मसाज नहीं. You see, people should be taught. Relaxation ही है डॉक्टर साहब. Oh, gee, then the relaxation is not in your hand; it is somebody else who is giving you that relaxation. It has to be your relaxation. बहुत अच्छी बात है. हमारे पास एक कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मिसेस रऊफ बात कर रही हूँ कराची से. अस्सलाम वालेकुम मिसेस रऊफ, कैसी हैं आप? एंड वेलकम टू द शो. शुक्र है, आज बहुत अच्छे गेस्ट आए हुए हैं, आपका शो भी बहुत शुक्रिया. और नादिया हुसैन मेरी फेवरेट है. ओह, तो फिर नादिया प्लीज आप बात करें प्लीज. जी मिसेस रऊफ जी, बहुत अच्छी बात की कि कामयाबी के लिए गुड लुकिंग होना जरूरी है, अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, हर वक्त मेंटेन रखना चाहिए अपने आप को. बहुत अच्छी बात है. बिल्कुल बिल्कुल. आप कहाँ से बोल रही हैं मिसेस रऊफ? कराची से बात कर रही हैं. कराची से बात कर रही हूँ. अच्छा, आप कोई काम करती हैं, कोई जॉब करती हैं? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मॉर्निंग शो जरूर देखती हूँ. मॉर्निंग शो जरूर देखती हैं. अच्छा, तो आप कुछ पूछना चाहती हो मिसेस रऊफ, या फिर आपका कुछ हमें कुछ बताना चाहती हो हमारे टॉपिक के बारे में? हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि चैंपियन वो नहीं होता जो जीतता है, चैंपियन वो होता है जो जीतना चाहता है. बहुत खूब, बहुत खूब. थैंक यू सो मच मिसेस रऊफ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. लॉन के लिए सवाल तो मेरी कॉलर ड्रॉप हो गई. मैंने कहा 3 सूट अभी तक हम ऑडियंस में देंगे, बल्कि अच्छे हैं हम जरा अपने ये आप यहाँ पे आए ना मेरे ख्याल से. नहीं, एक काम करें ना, आप इनमें से ये कहें. बॉयज आप मेरे साथ चले, आप मेरे साथ आए. यहाँ डॉक्टर बॉयज इनको कोई टास्क दें, कुछ आप इनसे कुछ करवाएं, क्योंकि ये तो सुबह सुबह मेरे साथ सच भी नहीं बोल रहे थे. कुछ करवाएं इनसे, तभी एक लॉन सूट मिलेगा इन लोगों को. आप में से जो भी 2-3 इसमें कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएं जल्दी से, और बगैर किसी चीज को टच किए एक टांग पे खड़े हों. जो सबसे ज्यादा खड़ा होगा उसको मिलेगा. ओए होए, आइए, कौन आता है? चलो आओ आओ. तो कोई बात नहीं. हाँ, तो हील उतार दो ना. हाँ, उतार दे. इधर आ जाए, इधर से हम 4 लोग आए एक टांग पे. आइए इधर आइए. इधर आ जाओ. आओ, किसमें कॉन्फिडेंस है इस मुकाबले करने का? सजा नहीं, ये लॉन की पीछे, ये लॉन की तरफ है. लॉन का नहीं चाहिए. चलो रेडी, चलो जी. इस तरह देखे, इस तरह एक टांग पर देखो, इस तरह एक टांग पर, इस तरह. मैं कहाँ जाऊँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ. मैं यहाँ से. डॉक्टर बॉयज इज सेलिंग रिलैक्सेशन. हाँ, रिलैक्सेशन. रेडी? जो एंड तक रहेगा उसको मिलेगा. चलो, ये तो आउट हो गई. ये तो आउट हो गई. ये चीटिंग नहीं. 3 चीजें होंगी. होल्डिंग नहीं. अपनी जबान से अपनी नाक को टच करें. गई आउट. अपनी जबान से अपनी नाक को टच करें. थैंक यू. ये भी गई, ये भी गई, आप भी गई, आप भी गई, आप भी गई, ये भी गई. अच्छा, चले आप अपनी जबान से अपनी नाक को टच करें. This one has won. है ना? ये क्या बात है. अच्छा, वो रख दिया. जबान से नाक को टच. गलती तो नहीं है. जबान से नाक को टच करें. और ये आप बैलेंस भी रखें. गई. जीवान. मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं वहाँ पे गया था, मैंने सबका इंटरव्यू लिया था. इससे मैंने पूछा था, इसने कहा था मुझसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं है, बट शी हैज कॉन्फिडेंस. नोबडी टोल्ड हर दैट यू हैव कॉन्फिडेंस. बिल्कुल. ग्रेट. थैंक यू.
थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, मेरे जहन में ये सवाल था कि आप लोग, कि हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो बात कर रहे हैं, खूबसूरती आधी कामयाबी, आप लोग जो सुबह सुबह उठ के आए हो, आप बैठो, आप इधर से जाना चाह रहे हो, कहाँ से? अच्छा, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। ये शेयरिंग इज केयरिंग, वेरी गुड। अच्छा, जो मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत लग रही हैं सबकी सब, और जो लड़के हैं, मैं आपसे पूछूंगी, लड़कियों से तो बड़ा पूछा जाता है कि आप फुल इतने मज़े का सूट पहन के आए हो, तो ये क्या था आपके, क्या आप सोच के आए थे कि मैं अच्छा प्रेजेंटेबल लगूंगा, खूबसूरत लगूंगा, तो क्या आपकी सोच थी? ये मेरी शादी का सूट था, मैं इसलिए पहनी। शादी का आपका, वाह, शादी का सूट है। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? क्या आपकी वाइफ है? माशाल्लाह, so sweet। इतने चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, क्योंकि नई नई शादी हुई है। मैं समझी मेरे मॉर्निंग शो की वजह से तैयार हो गया है। ये क्या हुआ? न्यूली कपल्स भी बिल्कुल। अच्छा, आप बताओ, आप अपना नाम बताओ। किरण। अच्छा किरण, कितना अर्सा हुआ आप लोग की शादी को? हमारी शादी को ये मंथ में नहीं हुआ, 15-20 दिन में। 15-20 दिन हुए? वाह माशाल्लाह, बहुत। 15 हुए या 20 दिन हुए? अभी ये नहीं पता, अगर ये नहीं अभी पता तो किस सालगिरह, शादी की सालगिरह किस तरह याद रखोगे? 15 या 20? नहीं, 31 जनवरी हमारी शादी की डेट थी। हाँ? 31 जनवरी हमारी शादी की डेट थी। 31 जनवरी आपकी शादी की डेट है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आप लोग, जब आपका रिश्ता आया इनके लिए, तो आपने क्या सबसे पहले देखा कि ये खूबसूरत है कि नहीं, या आपने ये देखा कि जॉब क्या देखा, क्या सोचा आपने? 25 दिन लव मैरिज है। नहीं, अच्छा हंसी आ रही है, बिल्कुल शर्मा रही है। अच्छा जल्दी से आई लव यू बोल दें एक दूसरे को, जल्दी से क्यूट तरीके से, जल्दी से आप बोलो 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 आई लव यू। आई लव यू। हम लोग जा रहे हैं एक ब्रेक पे, आप लोग कहीं मत जाएगा। We'll be right back. बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, ये बिखरी सी लटे हैं ना, इन्हें चेहरे पे उड़ने तो, हाँ बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। सवेरे सवेरे वेलकम बैक नाज़रीन। जी हाँ, हमें कभी हो रहे थे, क्या बोला था उन्होंने, कामयाब होने के लिए इंसान होना जरूरी है। बिल्कुल, वो जानवर कामयाब नहीं होता। अच्छा, एक और चीज आपने देखी इसमें जी, जो लोग अपने आप को खूबसूरत समझते हैं और हाँ, हैं, हाँ। वो ये कह रहे थे कि कामयाब होने के लिए खूबसूरती जरूरी है, और जो नहीं थे वो कह रहे थे जरूरी नहीं है। ठीक है, सो दिस बेसिकली मीन्स कि जो आदमी बज़ाहिर अपने आप को खूबसूरत नहीं समझता, शायद उसके अंदर कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। और हम अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे, नौकरी मिल जाती है खूबसूरती पे, मगर नौकरी बरकरार रहती है खूबसूरती से नहीं, खूबसूरती से बचती नहीं है। अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अच्छा ज्यादा मिलती है, यू कैन यूज इट एज अ टूल। अच्छा किरण, मुझे बताओ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देखिए, नहीं खैर मैं इस बात पे एग्री नहीं करती। इम्प्रेशंस डू कीप चेंजिंग, एवरी टाइम यू मीट अ पर्सन आपको हर दफ़ा एक नया इंप्रेशन उसका मिल रहा होता है। लेकिन अगर अच्छी लुक्स हैं तो एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन जरूर रहता है दूसरे पे, अगले पे। अच्छा, जब किरण आपकी शादी हो रही थी, जब आपके हस्बैंड ने आपको प्रपोज किया था, खूबसूरती देखकर ही आए, खूबसूरती देख के किया था, कमेंट ही ये था कि यू वेरी ब्यूटीफुल। आई वाज लाइक ओके। और बाद में पता चला कि खूबसूरती के साथ साथ ब्रेन भी है, सलाहियतें भी है। बाद में पता चला, देखे उन्होंने, शोज देखे, फिर जाके प्रपोज। अच्छा पहले से नहीं पता था कि आप, नहीं उनको नहीं मालूम था कि मैं टीवी तो कहाँ देखा था आपको? अगर शोज पे नहीं देखा, चलते फिरते देखा। चलते फिरते, ये कहाँ चलती फिरती है आप, तो देख लिया।
रेस्टोरेंट में देखा, रेस्टोरेंट, अच्छा अच्छा अच्छा। एंड म्यूचुअल फ्रेंड्स भी तो थे, आई रिमेंबर बतूल ने मेरे साथ एक फ्रेंड थी, बट ही वाज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। वाओ वाओ। तो उनका पहला यही मकसद था कि खूबसूरत है तो मुझे इनसे ही शादी करनी है। वाओ ग्रेट। वैसे तो और भी बहुत लोग खूबसूरत उनको टकराए होंगे, नजर आए होंगे जिंदगी में, लेकिन आपकी कुछ कनेक्शन होता है, कहीं क्लिक होता है। बिल्कुल। ऑरा इसका ऐसा होगा कि वो रमशा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप बिकॉज आप न्यूज़ एंकर हो, तो हमारी जो न्यूज़ की फील्ड है इसमें जब हम न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हो और आपके कोलीग्स पढ़ रहे होते हैं, तो क्या इसमें खूबसूरत लगना ज़रूरी होता है? देखिए, जब आप स्क्रीन पे आ रहे होते हो तो आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए, यू लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि लोग जब एक चीज़ देखते हैं तो हम उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह होते हैं, जो हम उनको एक न्यूज़ कन्वे कर रहे होते हैं। खूबसूरत होना ज़रूरी है स्क्रीन के लिए, लेकिन आप में टैलेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं हो कि खबर क्या है या मैं क्या चीज़ कन्वे करने जा रही हूँ, मैं सिर्फ तैयार होकर अगर बैठ जाऊँ, मुझे खबर की नौयत का अंदाज़ा ना हो, तो फिर मैं उसको उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकती, मैं उसको उस तरह लोगों को बता नहीं सकती। तो उससे फिर ये होता है कि लोग फिर आप पे ट्रस्ट नहीं करते, आपके ऊपर रिलाय नहीं करते। फिर एक वक्त आता है कि यार इसको सिर्फ, अगर मैं हर वक्त ये सोच रही हूँ, मेरे बाल, मेरे आंखें ये मैं यूं आ रही थी न्यूज़ पे पढ़ते एक सेकंड खबर है आज की, यहाँ पे ये हो गया, लेकिन एक सेकंड मैं अपना देख लूं पहले। बिल्कुल। अच्छा, ये होता है कि हाँ, आप ऐसा करो कि आप प्रेजेंटेबल हो, आप अच्छे लगो, आप खूबसूरत लगो स्क्रीन के ऊपर, ताकि लोग आपको देखें, कॉम्प्लीमेंट भी करें, और लेकिन उसके साथ आपका हार्ड वर्क हो, आपकी मेहनत हो, आपका टैलेंट हो, जो आपको मजीद खूबसूरत बनाए। जिस तरह सारी न्यूज़ एंकर्स हैं हमारी यहाँ माशाल्लाह सभी बहुत खूबसूरत हैं और वैसे भी बहुत प्यारी हैं, लेकिन फिर ये है कि कंटेंट वाइज मेहनत बहुत करते हैं सब, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, जिसकी जो शिफ्ट है उससे पहले वो 2-2 घंटे पहले सब पहुंच रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो सब ये खूबसूरती नहीं देख रहा। वैसे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, तो चूंकि न्यूज़ सुन रहे होते हैं डॉक्टर इंसान, मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, मेरे पब्लिक डीलिंग जी जी बिल्कुल, आपको हैरत होगी, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जो न्यूज़ नहीं सुनते, न्यूज़ एंकर को देखते हैं। हाँ, यही मेरा सवाल है। मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज़ सुनते क्या सिर्फ एंकर्स को देख रहे होते हैं? न्यूज़ भी सुन लेते होंगे ना, अच्छी शक्ल में। अच्छा है न्यूज़ नहीं सुनते, अच्छा है न्यूज़ नहीं सुनते। मेरा सवाल ये है, रिलैक्स रहते हैं, न्यूज़ नहीं सुनते। मेरा सवाल आप सबसे ये है कि जो इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, वो क्या इसी बेस पे हायर करते हैं कि खूबसूरत है, या इस बेस पे कि कितना अच्छा बोलते हैं? ये वही बात है जो हम पहले कर चुके हैं, एक्टिंग दुनिया गोल है कि वो हायर हो जाएंगे बट फिर फायर हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही है कि अगर आपको खूबसूरती पे हायर भी कर लिया जाए एंड आप उसको डिलीवर नहीं कर रहे हो, आप उसमें बार बार मिस्टेक्स कर रहे हो, आप उसको अपनी जॉब को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो देन यू आर आउट, आपके पास फिर मौका नहीं रहता है। जब आप पहली बार आई थी, आपने जो इंटरव्यू दिया था उसमें सबसे पहले आपसे क्या पूछा था, या आपका ऑडिशन हुआ था, क्या हुआ था? मैं यहाँ आई थी तो मेरे इंटरव्यू में मेरे बॉसेस ने मुझसे सवाल किया कि आप क्या बनना चाहती है, मैंने कहा मैं न्यूज़ एंकर बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला, अभी तो मैं उस वक्त रिपोर्टर थी, रिपोर्टिंग कर रही थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा आप तो रिपोर्टिंग अच्छी करती हैं, उसे क्यों छोड़ना है आपने? मैंने कहा मुझे वो मेरा पैशन है, मैं करना चाहती हूँ और मुझे वहाँ पे भी जाना है, रिपोर्टिंग मैंने की है, वो मैं छोड़ूंगी भी नहीं। तो फिर कहते हैं ठीक है आप बन सकती हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन जो है अच्छा ये लफ्ज़ बोला उन्होंने मुझे कहा, लेकिन उसके आगे क्या कहा मेरे बॉस ने, आप खूबसूरत हैं, बन सकती हैं, लेकिन यू नीड हार्ड वर्क, अभी आप इसके लिए रेडी नहीं हो। फिर उन्होंने मुझे तैयार किया, मुझे बहुत प्रैक्टिस कराई है, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, सिर्फ खूबसूरती पे मुझे लाके नहीं बिठाया कि मेरा मेकअप कर दिया, मुझे बहुत खूबसूरत से बाल बना के बिठा दिया। मुझे हमेशा से मेरे बॉसेस ने मुझे ये कहा कि आप जो है अपने ऊपर मेहनत करो, अपना काम स्ट्रॉन्ग करो, अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग करो, हर चीज आपकी ओके होनी चाहिए, देन यू बिकम एन एंकर। अगर मैं सिर्फ मेकअप करके बैठ जाऊं तो आई एम नॉट एन एंकर। लेकिन मुझे ये बताएं, अगर आप बॉस हैं, आपके पास 2 लोग आते हैं, 2 कैंडिडेट्स आते हैं, मैं बॉस हूं, दोनों की सीवीज इक्वली गुड हैं, दोनों का एक्सपीरियंस इक्वली गुड है और दोनों को बात करना आता है, दोनों का इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया, दोनों फीमेल्स हैं, आप किसको प्रेफरेंस देंगी, जो ज्यादा गुड लुकिंग होगी या जो नॉर्मल नॉट सो गुड लुकिंग होगी? मतलब दोनों बराबर की कश्मकश में मुझे डाल दिया, टैलेंट बराबर, मुझे बॉस बनना ही नहीं है। नहीं बताओ, मुझे बनना ही है, ऐसे में मैंने नहीं देना जवाब, मुझे नहीं पता बॉस, मैं एम्प्लॉई ठीक हूं, आप बॉस बन सकते हो प्लीज प्लीज। मैं तो जी जी है, आप बनना क्या, आप तो है। उनके फिर मैं मजीद टेस्ट करूंगी एंड देन आई चेक मोर ग्राउंड्स देन दिस। एक आपने कहा ना वो हर मामले में इंटरव्यू बहुत अच्छा गया,
सीवीज भी बहुत अच्छी दोनों की पर्सनालिटी देखेंगी, पर्सनालिटी भी दोनों की। अच्छा चले मैं आपको एक टेस्ट बताऊं, मैं आपको एक टेस्ट बताऊं, अगर न्यूज एंकर है तो एक टेस्ट बताता हूं मैं आपको, वो कभी कीजिएगा। तमाम चीजें अगर बराबर है तो दोनों को आप दीवार की दूसरी तरफ भेज दें, यानी उनका चेहरा नजर ना आए, और दोनों को कहें न्यूज पढ़े। जब विजुअल नहीं विजुअल मोड जब बंद हो जाता है, मसला हमारा क्या है, जब से दुनिया में टीवी आया, जिसकी आवाज अच्छी है, जिसने जब से टीवी आया हम हो गए विजुअल। इसलिए जैसे ही हम किसी खूबसूरत चीज को देखते हैं, बाकी हमारे सेंसेस इतने काम नहीं करते क्योंकि आंखें ज्यादा काम करती हैं। तो अगर आप इनको ऐसी जगह भेजते हैं जहां इनको देख ना सके और कहें अब बोलो, तो उस वक्त विजुअल सेंस आपका बंद हो जाएगा। तो ये जो कान है आपके, ये बेसिकली चेक कर सकेंगे कि टोनैलिटी कैसी है, तलफ्फुज कैसा है, रिदम कैसा है, डबल चेक। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि मैं न्यूज़ की बात कर रहा हूं। अगर आईटी कोई किसी भी फर्म में जाना है तो किसको करें? मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस में मैं तो देखूंगा। भाई वो तो उन्होंने बहुत मुश्किल जगह लिया ना, she's saying they're both equally good, which is not possible. Which is that's what I'm saying, not possible. मैं कहीं ना कहीं एक कीड़ा जरूर किसी एक में निकाल लेंगी। हाँ, that is true। और फिर उसके बाद बता दूंगी, हो सकता है कि खूबसूरत वाला बेहतर हो। बॉस, इसको कहते हैं बॉस। हम बात करें कामयाबी ढूंढने वाली। अच्छा, खूबसूरती आधी कामयाबी है। नादिया, आप बताएं कि थोड़ा सा मुझे कि जो हमारी यंग लड़कियां होती हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, मॉडलिंग में आना चाहती है, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है या उनकी खूबसूरती होती है, क्या देख रहे होते हैं आप लोगों के फील्ड में? मॉडलिंग में एक्चुअली खूबसूरती जो है वो इतना ज्यादा नहीं रोल प्ले करती है, बिकॉज मेरे ख्याल से हम यही जानते हैं कि खूबसूरत हो सकते हैं तो मॉडल बन सकते हैं। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अच्छा, तो इनमें से जो सबसे टॉल है वो मॉडल बन सकता है। हाँ, और वेट कम होता है मॉडलिंग में, हाइट और वेट सबसे ज्यादा होता है, फिर आपकी फिजिक होती है, फिर आपका कॉन्फिडेंस होता है, उसके बाद आपकी लुक्स आती हैं। बिकॉज लुक्स जो हैं आप मॉडलिंग में या फोटोग्राफी के थ्रू आप अपनी लुक्स को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मेकअप आपकी लुक्स को एनहांस कर सकता है। हमारे जितने भी लॉट ऑफ द एक्ट्रेसेस अगर आप बॉलीवुड में देखें तो जनरली अगर आप उनको रियल लाइफ में देखेंगे, और ये सिर्फ मैं नहीं कहती हूँ, लाइक जनरली लोग कहते हैं कि यार अल्लाह खुदाया तौबा, उसको तो हमने देखा, वो तो इतनी बदसूरत है। तो but why do they come beautiful on the screen? Because of the fact that the makeup and the camera enhances your beauty. आजकल तो टेक्निक्स भी आ गई हैं, कैमरे जो है और फोटोशॉप आप कर सकती हैं, बहुत कुछ होता है, आपकी लाइटिंग होती है, जैसे कि हमारे पास ये चल रहा है कुछ बिफोर एंड आफ्टर। नहीं, before and after is something else. This before and after is something else. मुझे तो लग रहा है कामयाब, ये देखें कामयाब होने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। ये ऑलरेडी कामयाब हमारी माशाल्लाह से। देखिए, मैंने ये तो बिफोर एंड आफ्टर कुछ और है। मेरा अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस है। many years back, न्यू ईयर पे I was in Bombay many years back ago. जी। तो I was invited at a private party. तो उस जमाने में माधुरी दीक्षित was that glamour. अभी तक है। नहीं, मैं वैसे उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अनिल कपूर भी था, तो वो मैं वहाँ आई वाज मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, तो वहाँ पे मैंने माधुरी दीक्षित को देखा। मैंने कहा ये शी वाज सच एन ऑर्डिनरी गर्ल एट दैट टाइम। आप सोच नहीं सकते उसको। हाँ नादी, ये बड़ा लोग जो हमारे एक्टर्स, इंडियन एक्टर्स से मिलके आते हैं, वो कहते हैं कि ये है शाहरुख खान या ये है। शाहरुख खान को आप रात को देख ले डर जाएंगे आप। जी प्लीज, सामने से प्रियंका चोपड़ा निकल गई, हम इसको पहचान मैं बाहर मलेशिया में कहा ये डॉन की उसकी वो फिल्म। जी नादिया, आप प्लीज अपनी बात को। नो, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि लाइक जो भी हम लोग जो एक्टिंग करते हैं, इवन कि आपको कैमरा फ्रेंडली होना और आप बहुत जरूरी है। एक फोटोजेनिक, एक आपकी जो शक्ल है ना वो फोटोजेनिक होनी चाहिए कि हो सकता है कि आप असल में जो है बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपका कि कैमरे के ऊपर आपकी शक्ल खूबसूरत नहीं आती है। ये एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम था। अच्छा, प्रॉब्लम था या प्रॉब्लम अभी भी है, आई डोंट नो, बिकॉज़ वी डोंट थिंक सो। हम इस बात पे एग्री नहीं करते। That's besides the point कि जी एग्री करते नहीं करते, but I according like कैमरे में मेरी हमेशा जो शक्ल जो आती है ना वो बहुत harsh आती है। I don't know why, like this is just my like it's just something that the camera picks up, like मेरी harsh इतनी
देखने में नहीं है, लेकिन हमेशा जो है वो हार्श शक्ल आती है ऑन स्क्रीन। तो चाहे वो फोटो शूट्स हो या चाहे वो मतलब टेलीविजन कैमरा के ऊपर हो, वो जनरली बहुत हार्श शक्ल आती है। लेकिन ये कि जब भी मैं लोगों से जनरली मिलती हूँ, लेकिन आप तो बड़ी डिफरेंट हैं, I'm just like हाँ, ये बहुत आपको सुनने को भी मिलता है, क्योंकि आप जब बात कर रहे थे फर्क पड़ता है ना स्क्रीन पे, बिल्कुल। मेरा ये भी एक सवाल है कि जो सर्जरीज कराते हैं तो क्या वो सर्जरीज फेल भी होती हैं? कौन सी मींस की सर्जरीज जो अपने आप को खूबसूरत करने के लिए कराते हैं, अब वो कॉस्मेटिक सर्जरीज जो होती है वो क्या फेल भी होती है? तो ये क्या उनसे फर्क भी पड़ता है कि अगर आप नहीं दो सर्जरीज आर लाइक एनी अदर सर्जरीज, कोई भी सर्जरी फेल हो जाती है, कहीं पे भी ब्लंडर हो जाता है, कहीं पे वो कुछ जो हमारी इंटरनल सर्जरी होती है वो तो चलें ठीक है, उसमें भी वही सब भंड हो जाते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है। अगर इसमें हो गया और दिख गया तो वो तो आपके लिए और मैं आपको एक नुस्खा दूं लोगों को। मुझे नहीं पता, बाज लोग के उम्र के अगर उस एज में चले गए तो शायद ये काम ना करे। Never use soap on your face. Never. भूल जाए। I know देर होगी। आपका जो टॉवल होता है उसको आप गीला करके जब आप नहा रहे हैं या मुंह धो रहे हैं तो उसको अच्छी तरह आप रब करें। हमारे बस बहुत छोटा जब मैं था and I was in the yoga institute in India, वहाँ मुझे ये चीज़ बताई गई थी। अच्छा। मैंने आज तक जिंदगी में सोप यूज नहीं किया फेस पर। I've never used the soap. वाओ। तो अगर आप इससे मसाज करेंगे तो आपके पोर्स खुलेंगे, डेड स्किन निकल जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन होगा। ये सारा सोप दुनिया का कोई भी हो, सब ड्रामा है, दिस इज ऑल नॉनसेंस के इसमें इसका आरक है, उसका तेल है। अगर आपको करना है यूज नेचुरल चीजें बहुत होती है, उसको यूज करें। ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं एंड मोस्ट फ्रेंकली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ अस आर बीइंग मेड अ फूल। ये अच्छा खासा जैसे रंग गोरा करने वाली क्रीम, दैट्स ये तो खुद डॉक्टर जानती है कि इट्स सो हार्मफुल फॉर योर स्किन। एक साहब थे लाहौर में, ये खवातीन को प्लीज उर्दू में एक और दफा अच्छा मैं एक लाहौर में एक डॉक्टर थे, तो वो मेरे पास आए। ही वाज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, बड़ा चालाक था। उसने क्या किया कि एक क्रीम बनाई और उसने केबल टीवी पे 6 लाख का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया 6 महीने का और वो चला दी। अब वो क्रीम उसने पूरे लाहौर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अच्छा पता चला 2 महीने में सारी क्रीमें बिक गई। अच्छा ठीक है, और जो क्रीमें बिक गई, अब ज़ाहिर एक होम्योपैथिक डॉक्टर था, क्वालिफाइड नहीं था ना, वो फार्मिस्ट था, कुछ भी नहीं उसको। उसके बाद लोगों ने शिकायत करना शुरू की कि लोगों को प्रॉब्लम खवातीन को होने लगी। उसने अपना बिस्तरा बांधा और गायब लाहौर से। वो केबल वाले के 6 लाख रुपए भी खा गया और खुद अपने पैसे लेके चला गया। तो बड़ी सिंपल चीज है कि सोप यूज ना करें अनटिल पता चला आप मेकअप शेकअप करते हैं तो ठीक है, कोई ऐसी चीज यूज करें कि मेकअप निकल जाए। अदरवाइज सिंपल टॉवल अच्छा मैं मेकअप भी नहीं करवाता। आपने देखा होगा मैं मॉर्निंग शोज में आता हूँ सिर्फ पफिंग कराता हूँ। आई नेवर लेट देम यूज मेकअप। बट हमें तो जरूरत पड़ती है ना डॉक्टर साहब। आप ये सोचती है कि आपको जरूरत पड़ती, किस चीज की जरूरत है आपको? नहीं, आप मेरा बगैर मेकअप के मैं हो ही नहीं सकता, शो ही नहीं होगा। ना मैं नहीं समझता। आप माइल्ड किस्म का हल्की सी चीज लगा लें। The whole thing is ट्राई करके देखें। कॉटन लें या टॉवल लें, उसको गीला करें। Whenever you go to your washroom, आप बात लेने जा रहे हैं, rub it vigorously on your face. It's actually people to people. जैसे रुबीना आंटी ने अभी मेरे ख्याल से बहुत माइल्ड मेकअप लगाया हुआ है and she's looking stunning and beautiful right now. Like प्लीज यहाँ पे कैमरा आए एंड हमें आए यहाँ पे आए और हमें ये नुस्खे बताएं आप। हम जो इस फील्ड में शुरू में जब मैं आई थी तो मुझे बड़ा मेकअप से वो उलझन होती थी, तो मैं इसको, लेकिन मैंने रुबीना आंटी बड़ा देखा स्क्रीन पे जब मैं अपने आप को देखती थी तो डार्क सर्कल्स भी नजर आ रहे हैं या पैच भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप सुबह से लेके जब रात तक एक चीज कर रहे हो और लाइट्स आपके मुंह पे पड़ रही है, तो हम जो है वो इस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं लेके कि हमारी स्किन अच्छी रहे या चीजें, तो करना पड़ता है। तो आप मींस कि आप तो माशाल्लाह इतने सालों से एंड योर स्किन इज स्टिल ग्लोइंग। How did you do this? कुछ हमें भी बताएं, कुछ अपने नुस्खे। Have glowing skins, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। जो जैसी स्किन के साथ पैदा होता है वो चली जाती है बहुत one lifetime। स्किन टू स्किन भी होता है, राइट? स्किन टू स्किन भी होता है। And then this वही बात है जो आजकल सब बच्चों को भी ये बात पता है कि क्लेंजिंग है एक ऐसी चीज जो जरूरी है। आप मट्टी में से, धूल में से, बाहर से, ट्रैफिक में से कहीं से आ रहे हैं, you have to cleanse and then moisturize। अगर आपकी ड्राई स्किन है जैसी आपकी मेरी बहुत ड्राई स्किन है, सो हमें मॉइस्चराइज करना पड़ता है और अपना ध्यान रखना पड़ता है। ये वही बात है जो हम बेसिकली खूबसूरती के साथ भी कह रहे हैं कि खूबसूरत कुछ लोग अल्लाह की तरफ से होते हैं, बट वही जो आज की हमारी प्यारी प्यारी बातें हैं उनमें से एक प्यारी बात है कि सभी खूबसूरत होते हैं। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, अभी आपने जो बात की कि हमें कैमरे पर आना होता है क्योंकि कैमरा रिक्वायरमेंट है
जब तक आप उसको पूरा नहीं करोगे तो आप खूबसूरत हो, लेकिन वही वाली बात डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, कुछ पैच आ रहे हैं, एचडी कैमरा है तो वो उसी लिहाज से आपको पोर्ट्रे करता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको अपने आप को उस तरह से मेंटेन करना पड़ता है या मेकअप करना पड़ता है ताकि जो चीजें उससे चाहिए, जैसे हम लाइट्स लगाते हैं कैमरे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, तो इसी तरह हम थोड़ा सा मेकअप भी करते हैं ताकि जो कैमरा है वो हमारे बिल्कुल सही है, रिक्वायरमेंट है वो तो। मगर हम जनरल पब्लिक की बात करें ना, हर लड़की तो कैमरे के सामने नहीं होती। मुझे मैं इसे एक कॉल पहले लेती हूँ, फिर मैं अपने ऑडियंस के पास आऊंगी सवाल लेके। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मोमल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? मैं हिना बात कर रही हूँ। हिना, आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके जितने भी गेस्ट बैठे हुए हैं मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हिना, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल प्लीज। मोमल, मैं भी देखने में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, अब तो मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मोमल शादी से पहले जिस तरह की लाइफ मुझे देखने को मिली, अल्लाह ताला किसी लड़की को ना दिखाए। मतलब मैं जॉब करती थी। किस तरह की लाइफ? मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी जी प्लीज। मैं जॉब करती थी, लेकिन मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन वहाँ जॉब करना मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब वहाँ के जो सारे होते थे, जो एक जेंट्स जो होते थे, वो मतलब इस हद तक गिरे हुए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं आपको लाइव कॉल पे नहीं बता सकती हूँ कि वो किस किस तरह की बातें करते थे और मैंने अपने आप को किस तरह वहाँ सेव किया है, ये मैं जानती हूँ। हमारे माशरे में जो है खूबसूरती एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये खूबसूरती जो है एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन जाती है। बिल्कुल सही बात कही आपने है ना। यहाँ पे हम डॉक्टर साहब से, प्लीज डॉक्टर साहब इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये भी तो चीज़ है? मैं भी पहले भी ये बात आपसे कहना चाहिए थी कि ये भी एक एस्पेक्ट है ज़्यादा खूबसूरत होने का कि आपको लोग तंग भी करते हैं जी। आपकी ज़िंदगी, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आपका बैकग्राउंड बहुत सपोर्टिव नहीं है, तो आपके लिए एक मुश्किल भी बन सकता है। तो इस चीज से किस तरह बचा जाए, क्योंकि हमारी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है। नेचुरल फिनोमेना है, जहाँ क्षमा होगी परवाना आएगा। इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। खूबसूरती होगी, लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब कुछ की इंटेंशन अच्छी होती है, कुछ की इंटेंशन बुरी होती है। जैसे आपने कहा ना, सपोर्ट ऑफ नियर एंड डियर वंस। जब आप अपने बच्चे की, बेटी की ग्रूमिंग करते हैं और आपको पता है कि मेरी बेटी एक्सेप्शनली अट्रैक्टिव है, स्कूल से ही पता चल जाता है। बिल्कुल। वहां से आपने उस बच्ची के अंदर वो कॉन्फिडेंस डालना है। शी शुड बी एबल टू फेस लाइफ, लोगों के पॉजिटिव नेगेटिव रिमार्क, और सबसे बड़ी चीज गलत नजर। वो जो एक नजर होती है ना, वो औरत पहचान लेती है कि नजर कैसी है मर्द की, उस नजर का मुकाबला कैसे करना। तो उसके लिए उस लड़की में बचपन से आपने कॉन्फिडेंस देना है। कुछ और इश्यूज भी हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, चूंकि हम बात कर रहे हैं। माँ बाप पे ऐसी बच्चियां हो, उस पर नज़र इसलिए रखनी है कि वो कहाँ जाती है, किस घर में जाती है, उसकी सहेलियां कौन है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नहीं तो जिस तरह ये बात करें कि जॉब, जब एक बार बंदा जॉब पे चला गया है तो आपके साथ तो नहीं अगर है। आपके पास कॉन्फिडेंस है, देखिए जहाँ कोई चीज़ आपके लिए एक रिसोर्स है, वसाइल है, वो आपके लिए एक बर्डन भी बनता है। ठीक है, तो जहाँ खूबसूरती आपके ख्याल में एक एडिशनल रिसोर्स है, आपके पास वसाइल है, वहाँ ये प्रॉब्लम भी क्रिएट। यू हैव टू लर्न टू टैकल पीपल। लोगों को टैकल किया जाता है। मतलब नादिया भी बैठी है, ये भी खूबसूरत है, ये टैकल कर लेती है ना लोगों को। इतना मुश्किल नहीं। आपको थोड़ी सी सबसे पहले फैमिली की सपोर्ट, एजुकेशन, फैमिली की सपोर्ट और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। क्या हमारी रुबीना आंटी, आप हमारी बच्चियों को, हमारी लड़कियों को, दूसरे लोगों की भी लोग मुश्किल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी की भी। उसके लिए वही 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो फैमिली की सपोर्ट हो, फैमिली ने आपको इस तरह से ग्रूम किया हो कि आपको बताया हो कि अगर कभी कोई बुरा वक्त आए तो आपको कैसे टैकल करना है। फिर खुद आप अपने आप को, एक वही चीज़ जो हम शुरू से बात कर रहे हैं, मैं भी यही कही थी, बहुत प्यारी बातें जो हुई हैं उनमें एक बात ये थी कि सारे इंसान खूबसूरत हैं, अल्लाह के बनाए हुए हैं, हसीन हैं, बट वी नीड टू, ऑल ऑफ अस, चाहे खूबसूरत लोग भी भोंडे लगते हैं कई दफ़ा जब वो ग्रूम्ड ना हो, अपने आप को ध्यान ना दें। तो ग्रूमिंग दोनों तरह की है। एक ग्रूमिंग है आपकी फिजिकल, जो विजुअली नज़र आती है। एक है मेंटल ग्रूमिंग। वो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। आप अपने आप को फिजिकली भी साफ सुथरा ग्रूम्ड रखते हैं, और साफ सुथरा भी सिर्फ शक्ल और वही क्रीम्स एंड एवरीथिंग नहीं,
صاف ستھرا میں آپ کے ہاتھ پیر کی خوبصورتی بھی. ہمارے یہاں میں دیکھتی ہوں کہ لوگ شکل تو بالکل ٹھیک کر کے گھر سے نکلتے ہیں اور جو آپ اینڈ the first thing that one notices is the feet. کسی بھی انسان کے آپ جوتے پیر سب سے پہلے دیکھتے ہیں اور وہاں آپ کی کلائی کھل جاتی ہے. بالکل گرومنگ میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے صاف ستھرا, اور ہمارا ایمان ہے, ہماری مذہب کا مذہب میں ہے. بالکل صفائی ایمان ہے اور ہمارے میں ایمان نصف ہے, صفائی مگر صفائی ہے ہی نہیں. اچھا ایک اور چیز نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی, میں آپ کو بتاتا ہوں. جی جاؤ. میں جب کسی سے ملتا ہوں تو 2-3 چیزیں ضرور دیکھتا ہوں. فیس اتنا نہیں دیکھتا, انگلیاں اور پیروں کی انگلیاں. ہاں یہ بڑا ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہے خواتین کی اگر آپ نے عمر چیک کرنی ہو, کیونکہ ظاہر اگر میک اپ ہوگا تو عمر کا پتہ نہیں چلا ہوگا. یہ یہاں سے کتنی عمر ہے میری؟ 200 سال. تم نے بتایا ہی نہیں ہمیں پہلے. 200 نہیں آپ بتائیں. اسکن الاسٹیسٹی سے پتہ چلتا ہے. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اپنی ایج کو چھپانے یا بتانے میں. آپ پلیز کیسے؟ I think 26-25 کے قریب ہونی چاہیے. Absolutely wrong. کتنی ہے؟ 34. I'm just going to say I'm more than that. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. پلیز السلام علیکم. 34. السلام علیکم. ہماری کالر کہاں ہے؟ یہ سوٹ پڑے جی, انہوں نے کالرز کال. ہماری کالر ڈراپ ہو گئی. ہماری کالر کہاں چلی گئی؟ اوہو چلے ہماری کالر ڈراپ ہو چکی ہے, لیکن پلیز ہمیں دوبارہ کال کریں. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ اور واپس آ کے ہمارے پاس ایک کیس ہے جن سے ہم بات کریں گے. اور جب تک بریک میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتی ہوں کہ ان کو تو میری ایج ہی نہیں پتا چلی. آپ لوگ کہیں مت جائے گا. we'll be right back. صبح میں ہے ویلکم بیک ناظرین. جی ہاں, جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے کیس کے بارے میں. میرے شو پہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نادیہ اور نائلہ نے. السلام علیکم نادیہ, کیسی ہیں آپ؟ نادیہ کون ہے؟ آپ نادیہ ہیں. نائلہ ہیں آپ؟ جی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ٹھیک کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. جی نادیہ کیا کہو گی؟ میں جو ہے میں نے انٹر کیا ہے اور میں ٹیلی کمیونیکیشن میں اپنی باس کی پی اے میں. اچھا I'm so sorry, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ 2 دوستیں ہیں. آپ اپنا یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگ 2 دوستیں ہیں. کب سے, آپ کتنی پرانی دوستی ہے آپ لوگ کی؟ ہم لوگ اسکول فرینڈس ہیں. 8 to 9 ایئرس سے ہم لوگ ساتھ ہیں. 8 to 9 ایئرس سے. جی. دوسرا ہینڈ مائک بھی چاہیے, تھوڑا سا قریب کر لیں. ہاں جی, ہاں بتائیے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے اور یہ مجھ سے زیادہ جو ہے جانتی ہیں. جیسے کہ آپ کا آج کا ٹاپک ہے مومل کہ خوبصورتی آدھی کامیابی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خوبصورتی پوری کامیابی ہے. 110% شیور ہے. کیونکہ جیسے کہ میری اسکول فرینڈ ہے, 8 to 9 ایئر سے یہ میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, ایکٹیویٹیز میں ہی پارٹیسپیٹ کرتی تھیں. ان کو فیشن کا بہت شوق تھا, فیشن کا, اور مجھے ان سب چیزوں کا کوئی شوق ہی نہیں تھا. ایون کہ یہ مجھ کوئی کام ہوتا تھا, نوٹس یا پھر کچھ بھی ہوتا تھا, یہ مجھ سے کہتی تھی کہ آپ مجھے بتائیں کہ مطلب کیا ہے. میں ان کو کی ہیلپ کرتی تھی. میں نہیں کہتی کہ یہ بری ہیں یا کچھ نہیں ہے ایسا, یہ بہت اچھی ہیں. لیکن بات یہی ہے نا کہ یہ فیشنیبل ہیں اور لوگ صرف انہی کو پوچھتے ہیں. مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے. اب دیکھیں یہ انٹر کیا ہوا ہے اور میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے. اچھا. پھر بھی ان کو جاب مل گئی ایز اے پی اے. کیوں؟ اور آپ کو جاب نہیں ملی؟ مجھے جاب نہیں ملی اب تک. گریجویشن کے بعد بھی یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ خوبصورت ہے اور فیشنیبل ہے, اور یہ فیکٹ ہے. یہ آج کل کی جو لوگ ہیں اس میں ہے کہ لوگ ہمیشہ تمہیں جیلسی ہو رہی ہے اپنے دوست سے. آپ کو کیا لگتا ہے اسی وجہ سے ہے یا کہ کوئی فرق ہے آپ دونوں میں؟ اور بھی میں سوچتی ہوں کہ فرق ہے. ہاں وہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو تھی, یہ جو ہے بس پڑھتی رہتی تھی, یہ بس پڑھتی ہی رہتی تھی. میں صرف پڑھتی نہیں رہتی تھی, میں اور بھی ایکٹیویٹیز بھی کرتی تھی. مجھے بچپن سے ان چیزوں کا شوق نہیں تھا نا, مطلب مجھے صرف پڑھائی بس. کہ اس میں کانفیڈنس زیادہ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں یو نو میں یہ نہیں کہتی کہ یہ بری ہیں, ان میں کانفیڈنس, ان میں سب کچھ ہے, یہ بہت اچھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ڈریس میں نے پہنا ہوا ہے مجھے ان سب چیزوں کا کوئی شوق نہیں تھا. یہ ڈریس بھی مجھے انہوں نے ہی سلوا کے دیا ہے. اچھا جی, تو یہ تو اچھی بات ہے نا کہ آپ کو دیکھو نا. ایک منٹ یہاں پہ ایک یہ چیز آ جاتی ہے, گرومنگ. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ سے اس کو اپنی سیلف گرومنگ کا شوق تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی یہ خوبصورت ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہاری نظر میں خوبصورت ہو سکتا ہے میری نظر میں یہ بدصورت ہو. انٹر کیا ہوا ہے, صحیح ہے, پھر بھی ان کو جاب مل گئی. اور میں کیونکہ اگین یو نو خوبصورتی جو ہے وہ صرف یہ آپ کے بالکل نو ڈاؤٹ یو نو کہ پڑھائی کے لحاظ سے
वो एक अलग चीज़ है कि जी ये कौन इतना लाइक ज़्यादा जो है पढ़ा लिखा है, कौन एजुकेटेड। लेकिन ये कि हो सकता है कि अगेन यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है कि अगर आपने पढ़ाई भी की हुई हो लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप अपने आप को अगर आप उस चीज़ में आप फोर्सफुल नहीं हो जो आपको जॉब चाहिए है कि उसमें आप फोर्सफुल नहीं हो, अगर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, भले उसने लाइक इंटर किया हुआ हो लेकिन अगर किसी जॉब इंटरव्यू में गई है, बात करने का इसका अंदाज हो सकता है ज्यादा कॉन्फिडेंस ये कहे कि जी हाँ जी मैं क्यों नहीं जॉब कर सकती, और तुम कहो कि हाँ जी सर मैं कर लूंगी जॉब। मुझे नादिया वैसे अभी जब से हम ये बैठे हुए हैं मुझे तो कॉन्फिडेंस इस पे ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो बोल नहीं रही है जब से हम आए। नहीं हम लोग क्योंकि उसकी बात इस वक्त सुन रहे हैं। जब 2 शॉट कट हुआ तो मैं वहाँ स्क्रीन पे देख रही थी तो शी वाज लुकिंग प्रिटियर देन इससे ज्यादा प्यारी लग रही है वो, लेकिन सबके अपने वो ओपिनियंस होते हैं। बिल्कुल सही कह रही है, मैं प्यारी नहीं। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आपने ग्रेजुएशन किस चीज में की हुई है, आपके क्या थे आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? मैंने आर्ट्स से जो है वो किया था। आर्ट्स में किया था आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था? आपको इंटरव्यू जॉब के लिए मैंने ग्राफिक के कोर्स भी किए हैं, मैं अभी कर भी रही हूँ ग्राफिक के कोर्स। अच्छा तो आपने इंटरव्यू, आपको लगता है कभी आपने ये सोचा इस बारे में कि हो सकता है कि आपकी दोस्त या जो कोई भी आपको चूंकि नौकरी नहीं मिल रही और जिन लोगों को भी मिल गई है वो आपसे ज्यादा एफिशिएंट हो काम में? आप पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, उसमें कोई शक नहीं होगा, आप ग्रेड्स भी बहुत अच्छे लेती होगी, इन सबको नोट्स भी देती होगी, बट जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं ना तो वहाँ वो किताब वाली पढ़ाई काउंट नहीं करती, वहाँ एफिशिएंसी काउंट करती है, वहाँ परफॉर्मेंस काउंट करती है। एज इन जो हम बात बहुत पहले से कर रहे हैं कि ब्यूटी नहीं है इम्पोर्टेंट, इट्स द परफॉर्मेंस लेटर ऑन। बिल्कुल वो परफॉर्मेंस हो सकता है आपकी लैकिंग हो, आप बहुत अच्छा बोल रही हो वैसे अभी भी, यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट इज नीडेड फॉर एनी जॉब। मैं इसीलिए आप वो चीज नहीं पकड़ रही हो जिसकी वजह से आपको नौकरी नहीं मिली और इसको मिल गई है, आप ब्लेम करने पे जोर डाल रही हो कि शायद इस वजह से क्योंकि खूबसूरत नहीं, आप वो जगह नहीं पकड़ रही हो कि जिसकी वजह से आपको नौकरी ये मसला सॉल्व नहीं हुआ तो चंद दिनों के बाद आपको कोई कहेगा कि आपकी बंदिश हुई है और आपको जादू मेंटली आपका साइकोलॉजिकली मसला क्या है। 3 इडियट्स देखी थी फिल्म, उसमें एक बड़ा कमाल का मैसेज था, बहुत ही वैसे तालीम से ज्यादा काबिलियत जरूरी है। ठीक है, आप बोलती बहुत है, अच्छा बोलती है मगर सही नहीं बोलती, आपकी आवाज से पता, यस आपकी गुफ्तगू से पता चला कि आपने एक माइंड सेट बना लिया है कि इसकी कामयाबी की वजह खूबसूरती है और चूंकि मेरे में नहीं है तो मैं कामयाब नहीं होगी। जहां आपने ये परसेप्शन, ये नजरिया डेवलप कर लिया, जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मरहले पे आपको ये प्रॉब्लम होगी कि जहां आपको नाकामी होगी, जिंदगी में मुझे भी बहुत नाकामी मिली है, मगर जब आपको नाकामी होगी तो आप कहेंगी इसलिए हुई कि मैं खूबसूरत नहीं हूं। 2 चीजें लोग कहते हैं, एक तकदीर को इल्जाम देते हैं, एक जिन्नात और जादू को। इन 2 के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। बाकी सारी दुनिया को भी हम सबको देते हैं अपने अलावा, उसका कसूरवार अपने आप को नहीं ठहराते। सिर्फ चंद चीजें करें। नादिया बैठी है, थोड़ी सी ग्रूमिंग की इनको टिप्स दे दें आप कि बाल किस तरह नहीं लेंगे। No, we'll be going in the wrong direction then. No, she doesn't need grooming. She's fine the way she is. थोड़ी सी ग्रूमिंग इसलिए चाहिए। ना पैर साफ है, उसकी शक्ल बहुत साफ है। मैं यहाँ पे she's wearing a black nail polish which is very in these days, which is very funky. उसको पता है, बिल्कुल सब पता है। सिर्फ उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर जॉब के लिए क्या खामी है। उसने अभी ये कहा कि ये ड्रेस भी मेरी दोस्त ने बना के दिया, इसका मतलब है ना ये अपने कपड़े पहनने में इंटरेस्टेड है प्रॉपर। अभी तो कहा ना उसने ये बात, she doesn't look after herself. She doesn't look after herself. She looks ये जो उन्होंने भी बात कही कि मैं ऐसा बनूं, तुम ऐसी बनो नहीं, तुम जो हो वो हो, जाके प्रूव करो कि मैं ये हूं, यहाँ पे कॉल लेनी है। अस्सलाम वालेकुम। बनना नहीं है। At the end of the day, it's not women that are going to get her a job. हेलो वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मोमिल आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक शेर डेडिकेट करना चाहूंगी। जी बिल्कुल, प्लीज उमेरा। खुशियों से हम किनार रहो तुम ताहयात, हर रोज रोजे ईद हो, हर शब शबे बरात। वाओ, थैंक यू सो मच उमेरा जी। क्या कहना चाह रही हो आप? जो है इतने प्यारे प्यारे मेहमान बुलाए हैं आज भी, कल भी, और इतनी अच्छे ड्रेसेस आप दे रही हैं,
तो मैं भी चाहूंगी कि आप एक बहुत बिल्कुल 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 आपसे मैं सवाल पूछूंगी। आप उनसे कहें, आप उनसे ये पूछे कि इनकी उम्र कितनी है। ये तो आसान सवाल हुआ ना। उसके बाद दूसरा सवाल, 3 सवाल। 3 सवाल पूछेंगे। 3 सच्चे बोलने। नहीं, मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने अभी जिक्र किया कि कल भी अच्छे मेहमान आए हुए थे, तो आप किसी एक मेहमान का नाम बताएं मुझे। जी, तहरीन जुबैरी थी। वेरी गुड। माइंड साइंस जो है डॉक्टर इमरान भी थे। वेरी गुड। और भी थे, लेकिन अब मुझे उनके नाम नहीं इतने याद आ रहे, लेकिन आपका शो इतना जबरदस्त है, मैं कल से कॉल मिला रही हूँ, आज भी बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक खूबसूरती पे गाना जल्दी से सुना दो। मैं ये जोड़ा तुम्हारा। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। नादिया कोई सवाल पूछना चाह रही है। हाँ जी नादिया बोले। हुमैरा, आप अपने आप को खूबसूरत समझती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई चीज ऐसी नहीं बनाई, और अगर हम किसी चीज को बुराई भी कहते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हम अल्लाह की बनाई हुई चीज को बुरा कह रहे हैं। सुन ले। चलो दे दो। इंडिया का एक बड़ा मशहूर गाना है ना, हुमैरा, इतनी खूबसूरत बात की आपने। ये फ्लिट्स का आयशा सुमाया लॉन्ग 3-piece सूट आपका हुआ। अपनी डिटेल्स प्लीज मेरी टीम को लिखवाएं और जल्द से जल्द एक जोड़ा आपके पास पहुंच जाएगा। एंड प्लीज इसी तरह हमें कॉल्स करते रहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे थे अपने यहाँ पे नादिया और नायला से। तो अच्छा, मैंने नायला से तो काफी कुछ सुना है। अभी नादिया आप क्या कह रही हो? आप बताओ ना, थोड़ा सा माइक इधर लाओ। और जो बता रही है वो उससे तो ये लग रहा है कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, लेकिन बोला सब कुछ उन्होंने। ये तो मुझे कुछ घपला लग रहा है। क्या सीन है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मान रही। आपको क्या लगता है कि क्यों आप कामयाब हो जिंदगी में और उसको लग रहा है कि वो नाकाम है? अगर मैं कामयाब हुई हूँ तो वो हो सकता है कि मेरा लक हो। ये जो है बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कह रही कि ये जो है पीछे रह गई तो इसका कसूर जो है वो खूबसूरती का सोचे। मैं ऐसा नहीं सोचती। अगर खूबसूरत है इंसान, हर इंसान खूबसूरत होता है, मैं तो ये सोचती हूँ कि हर इंसान खूबसूरत है। और अगर वो खूबसूरत है और अगर आगे बढ़ गया पे हो और ये क्यों नहीं है? आपकी सोच से इसका क्या जवाब है? आप क्या सोचती हो? मे बी लक हो। मे बी लक। I disagree with that because there is no such thing as luck in life. होती है बहुत एक छोटी सी चीज है। ऐसी कोई चीज नहीं होती लक। आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। खुशकिस्मती या बदकिस्मती दोनों आप खुद बनाते हैं। आप जितने बड़े लोगों को इस वक्त देखते हो ना, देखो हम इंस्पायर होते हैं खूबसूरती से भी लोगों की, बट जनरली हम लोगों की कामयाबी से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, खूबसूरती से कहीं ज़्यादा। लुक एट नादिया, लुक एट हर, लुक एट लॉट ऑफ पीपल जो आज, अगर हम औरतों की बात करते हैं या आदमियों की भी, तो जो लोग कामयाब हैं हम उनकी कामयाबी से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, खूबसूरती से नहीं। और इंस्पिरेशन आपको देता ही वो है जो कि कामयाब हो। खूबसूरत आपको देगा इंस्पिरेशन, बट थोड़े दिन के लिए देगा। एक चीज और है कि इन्होंने कहा कि मुझे शायद लक की वजह से मिल गई और इनको जॉब नहीं मिल रही है। एक होता है ना, एक वनडे होता है और एक T20 होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने T20 खेला है, शायद ये उस जगह पे पहुंच गई है। आप टाइम और उसके साथ मेहनत कीजिए, क्योंकि जब आप टाइम देते हो ना तो फिर वो वक्त आता है कि हाँ यार, हो सकता है कि एक वक्त तुम्हारे पास ऐसा आए कि आप इसको पीछे छोड़ दो। इंशाल्लाह बिल्कुल आएगा। बेसिकली पॉजिटिव रहना है आपने। कल भी हम अपने शो पे यही बात कर रहे थे। और वो करूंगी ताकि लोग मुझे भी करें, मतलब मुझे भी जॉब मिले। इतनी खूबसूरत बातें कर रही हो तुम। देखो, हम अभी तुमने इधर ही बात करते करते अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया, क्योंकि तुम्हें एक पॉजिटिव वाइब्स मिली, जैसे हम सब बता रहे हैं आपको। और इसी तरह से आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आप जब तक अपने आप को नहीं बताओगे ना कि आप अच्छी हो, आप बेहतर हो और आप कर सकती हो, अगर वही बात बताओगे उतना सोचना है। इनका मसला ये, एक छोटा सा मैं जोक बताऊं, छोटा सा है। आपका मसला ये, एक आदमी था, वो चर्च में गया। चर्च में जाने के उसने कहा कि अल्लाह अल्लाह, मैं एक लॉटरी का टिकट जीतना चाहता हूँ, तो जितने भी मुझे इनाम मिले ना 25% तेरे डब्बे में डाल दूंगा तेरे लिए। अच्छा जी। कुछ दिन के बाद कहता अल्लाह में लगता है तुझे 25% नहीं चाहिए, 50% दे दूंगा। वो भी कुछ दिन गुजर गए। फाइनली वो कहता अल्लाह में अब जा रहे, तू बड़ा है, तू खाली के कायनात है, चल 75% तेरे और 25% मेरे। ऊपर से आवाज आई, पहले टिकट तो खरीद। इनका यही मसला है। और एक और सवाल मुझे पूछना है, वो ये पूछना है कि आपने जॉब करनी क्यों है? क्योंकि हर जरूरत होती है, सबके घर में जरूरत होती है। फाइनेंशियली आजकल महंगाई बहुत है, आपको पता है। मुझे ये बताइए, आपके घर में प्रॉब्लम है? जाहिर है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे अपना शौक भी है।
شوق ہے نا, بالکل شوق ہے, شوق ہے آپ کو تو آپ اس کے لیے کام کرو. ایسا تو نہیں ہے نا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کھانے کو بھی نہیں ہے کہ بس جاب نہیں ملے گی تو میں ختم. مجھے شوق ہے, اس کے ساتھ ساتھ اچھا بھی کرو, محنت کرو اپنے اوپر, خود کو ٹائم دو تاکہ وہ چیز آپ کے اوپر آئے نا. جی ٹھیک ہے کیا, یہ اب سے یہ سوچنا چھوڑ دو کہ مجھے جاب نہیں مل رہی. ابھی نہیں مل رہی یار, مجھے وقت پہ مل جائے گی, کوئی بات نہیں. جاب زندگی نہیں ہوتی ہے, زندگی کو انجوائے کرو اور اس کے ساتھ جاب ڈھونڈو. ایک چھوٹا سا پرابلم یہ بھی ہوتا ہے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اور ہم جو اچھے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے اس وقت گڑبڑ ہو جاتی ہے, پڑھائی میں دھیان کنسنٹریٹ ہوتا ہے اور دوسری چیزوں پہ نہیں ہوتا, اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نکلیں گے یہاں سے ہمیں بیسٹ پرفیکٹ جاب مل جائے گی. پریکٹیکل لائف میں اور پڑھائی میں بہت فرق ہے, اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو ٹو ٹرن یور سیلف انٹو دی پریکٹیکل موڈ. اچھا ایک چیز ہوتی ہے یو نو لائک ایک اپنا مینٹل ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے ہو کہ نہیں, ٹھیک ہے نا. لوگ آپ کو خوبصورت سمجھتے ہوں گے بھلے یو نو لائک کوئی اور آپ کو کہے گا کہ یار یو سو پریٹی یار, پر آپ خود یو نو کانشیس ہوتے ہو, آپ خود کانفیڈنٹ نہیں ہوتے ہو کہ نہیں 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 یار آئی ایم ناٹ بیوٹیفل ایٹ آل. جب آپ خود نہیں فیل کرتے نا, چاہے آپ اصل میں ہو یا نہیں ہو, آپ کو خود فیل کرنا ہے کہ آپ بیوٹیفل ہو, آپ کانفیڈنٹ ہو, تاکہ یہ کہ وہ چیز جو آپ فیل کرتے نا وہ آپ دوسروں کو بھی آپ وہ کنونس کر دیتے ہو کہ یس you know the other person will get convinced کہ جی you are beautiful. آپ کا کانفیڈنس ہی بوسٹ. اسی لیے ایک بڑی خوبصورت بات ہمارے برسوں پہلے ٹیچر نے کہی تھی, پہلے انگلش میں کہتا ہوں پھر اردو میں کوشش کروں گا. the external نہیں, پہلے بڑا مشکل ہے وہ, the external world is a reflection of the inner world. یہ جو باہر کی دنیا ہے نا, یہ وہ ہے جو آپ کے اندر ہے. تو یہاں پہ جو تبدیلی آئے گی تو باہر خود بخود تبدیلی آئے گی. ایک فلم دیکھ لینا دا سیکرٹ کے نام سے, مارکیٹ میں اویلیبل ہے, دا سیکرٹ, ڈی وی ڈی لے لینا, دیکھنا اس فلم کو, چینج کرے. جاتے جاتے میں آپ سب سے ایک آخری بار ایک لائنر لاسٹ جو ورڈ ہوتا ہے وہ میں روبینہ آنٹی سے شروع کروں گی. آپ کیا کہیں گے اور کیا میسج دینا چاہیں گی ہمارے اس ٹاپک کے بارے میں ہماری آڈینس کو اور ہمارے ویورز, خوبصورتی یا صلاحیت؟ There's no two ways about it. Only صلاحیت, only and only صلاحیت. اور اس لیے کہ خوبصورتی جب آپ باصلاحیت ہوتے ہیں تو آپ خوبصورت خود بخود لگنے لگتے ہیں. بالکل بالکل. جی رمشا آپ کیا کہو گے؟ صلاحیت خوبصورتی کے ساتھ, تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے کیری کر کے اچھی جگہ پورٹری کرو. اس میں صلاحیت ہوگی, نکال نہیں رہی ہے, ویری گڈ, اس کو جا کے اس نے اپنے اس میں نکالا. ویری گڈ, تھینک یو رمشا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ مجھے بتائیے آپ کے ٹاپک کو ایگزیکٹلی آپ کے ورڈ کیا تھے؟ خوبصورتی آدھی کامیابی. آدھی کامیابی یہی ہے, آدھی کامیابی ہے, پوری نہیں ہے. پوری نہیں ہے. ویری گڈ. جی کرن, خوبصورتی ہے ضروری کہیں نہ کہیں, وہی آدھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اچھے آداب, اچھے اخلاق, اچھی سوچ بہت ضروری ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. تھینک یو سو مچ کرن. جی نادیہ. ویل آئی مین اتنا کچھ سب لوگوں نے کہہ دیا. ڈیفینیٹلی وہی چیز آتی ہے کہ یو نو خوبصورتی جو ہے وہ آپ اپنے اندر آپ فیل کرو گے تو آپ دوسروں کو جو ہے وہ کنونس کر سکو گے وہ کہ یو نو آپ خود خوبصورت ہیں. آف کورس صلاحیت کے ساتھ جو ہے آپ کو یو نو اپنی خوبصورتی کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا جتانا ہے. بالکل بالکل, ویری گڈ. اچھا اب ہم ایک چھوٹی سی مجھے اناؤنسمنٹ کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ نہ کرے, یہ نہ کرے. اناؤنسمنٹ سے پہلے ایک سوٹ رہ گیا ہے, ایک سوٹ رہ گیا آپ نے ان میں سے کسی کو دے کے جانا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل یہاں پہ ہم دینے کے لیے بیٹھے ہیں تو ایک جلدی سے میں اپنی آڈینس سے سوال کر لیتی ہوں. ہاں نادیہ آ جائیں, آپ پوچھیں. آ جائیں. نہیں کہ اپنے آپ کو خوبصورت کون سمجھتا ہے؟ ویسے سوٹ کے لیے سب آ گئے. کون سمجھتا ہے؟ Nadia, وہ pink والی, she is the only one who thinks that she is actually truly beautiful. Yeah. Then she okay, great. Nadia, آپ اپنے ہاتھ سے لیں, please. Please. لیکن نا confidence بھی تو ہے نا. بہت مبارک. عائشہ سبایا کی لانگ تھری پیس سوٹ انجوائے کریے گا, ٹھیک ہے. اچھا میں جو آپ کو بتائی تھی کہ تھوڑی سی اناؤنسمنٹ کرنی ہے, اناؤنسمنٹ نہیں تھوڑی سی سیلیبریشن کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ ہماری جو میری بہت ہی اچھی دوست کرن ہے, ان کی برتھ ڈے ہے تو وی گونا وش ہیپی برتھ ڈے ٹو ہر.
इनकी 40वीं बर्थडे ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। पर नो, हैप्पी बर्थडे किरण, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और शो के बाद हम अपना केक भी काटेंगे, ठीक है ना? एक बार हम सब मिलके विश कर दें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर किरण, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है। लास्ट में मैं अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को यही बोलूँगी कि खूबसूरत हम सब हैं, आप सब हैं, सारी औरतें हैं, सब लोग हैं, सिर्फ औरत भी नहीं मर्द भी हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी, अंदर से अगर हम खूबसूरत हैं तो हम बाहर से ऑटोमेटिकली खूबसूरत हैं। तो अंदर से खूबसूरत होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और ये हमेशा सोचें कि हम अंदर से खूबसूरत हैं। वो ऐसी स्ट्रांगनेस आएगी, ऐसी पावर आएगी कि आप लोग खुद वो महसूस करोगे अपने आप में कि हाँ, हम तो बहुत खूबसूरत हैं। हम कल फिर मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। हमें दुआओं में याद रखिएगा, कहीं मत जाइएगा। कल 9 बजे सिर्फ आप लोग मेरा शो देखेंगे, सुबह सवेरे समा के साथ।